So first of all, I want to formally welcome all of you to this class. We are not a very big group. We are three people in this. Vaishali, can you check where is the third Actually, person? sir, since I didn't attend the webinar, I just wanted to clarify since people are yet to join, हाँ since we have time. I हाँ feel, for example, if someone has any घर में ही मुझे इश्यू है या हाँ किसी और को मेरी फ्रेंड को इश्यू है, हाँ तो इन दैट केस कौन सा रेमेडी देने से उसको मेरी फ्रेंड को हेल्प करेगा, ये कैसे पता चलेगा? ये कोर्स में गो थ्रू करने के बाद समझ में आएगा मुझे? नहीं मनी see it is a money related or abundance related remedies first ओके। of all. So if you have a money related issue, so हम्म। first of all, I'll just Vaishali, can you just put a message to the person? यस सर, उनको कॉल भी करी थी, मैसेज ड्रॉप किया सर, एक बार ट्राई कर रही थी कॉल करके। ठीक है सर, ठीक, okay. So what I will do is that I'll uh, tell you why a blockage is created, right? First of all, we are talking of remedy. See, why, what, where a remedy is possibly working, where a remedy is possibly not working. Why will it not work? There are certain set karmas that we have to, pay by in way of donation, in way of pain, in way of there is some legacy. We have got some blessings because of legacy. We have got some challenges because of some legacy, right? And those legacies is we improve them. There was a man who used to in morning steal things, and in the evening he used to pray to God religiously. Religiously, he was a very honest thief. Thief. He was a very honest thief. He used to steal in the morning between 4 to 11, and he used to go in the evening at 5 to 9 to the temple and do the prayers, necessary prayers. And he did it whole through his life. He died. He went to the heaven. And he asked, Sir, how do I know of what karma I am getting what? So the God very smartly smiled over him. He said that, you see, you were doing a theft, you met with an accident first time, and your leg got broke. But you were doing the prayer of me also. So I allowed you to have a treatment. And then again you did a theft, your father died. You didn't have money. But I send you some people who can support you because you prayed for me. Hmm. So are both the karmas good and bad? We are paying in one way or the other. It is upon how we look, how we are looking at it. What is our perspective? If I say I am doing a good karma by teaching a good subject, there is a bad karma also of mine, which is not allowing me many people to have in this group. Is that right? Is that right? So there are many people that in the group. What does that mean? Should I stop doing my good karma? If I have committed Kiran ma'am that yes, today I will take a class, irrespective of the group size, I will do my class honestly and religiously. So that is adding a good karma to me. That is how you are adding a value to me. This is how karma cycle works. If your father is hospitalized and you are taking a divine class, it is divine which is telling you to see that class so that there may be something which is coming ahead, which you can handle in a better way. At least, what do remedies when we know something? This medicine solves me. What does it give you? First thing that it gives you a mental relaxation. Yes, I am aware of how to handle it. Why a fear is there in a person? Why a fear is there in a person? Because he is not able to handle it. He does not know how to handle it. When you don't know how to handle it, you have a fear. You have anxiety. You have anxiousness. You feel that how you will face it. Correct? I So, don't mind. What is the duration of the class? see, as of today, we will do one class a week and it is going to be 7 classes maximum. So within maximum 1.5 week month, it is going to get over. In between, I will turn it to 2 classes a week because there is one batch is getting finished of mine in 2 weeks time. So I will shift that once that batch is finished. So I will use those days
I can have a batch at we can have a class at 7:30 on Saturday, every Saturday, and we can have another class on. I'm not asking that. Right now, duration कितना लेंगे आप? 1 hour, 2 hours, 1.5 hour 1.5 hour. Okay. maximum. By Oh. 9 o'clock, you will be free. Before 9 o'clock. Okay, okay. Okay. So you will be able to take rest that way. Oh. Okay. Sorry, So don't let mind. us. I'll be off for a while. Huh, I'll you can switch, you can off your video, but keep listening to us. Okay, just a minute, not more than that. That is okay. That is Thank okay. you, sir. That is okay. So, since should we start? Vaishali is the other person joining. सर उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है. उनको एक पर्सनल मैसेज डाल दो. हाँ डाल दिया मैंने. वी आर स्टार्टिंग. ठीक है. फिर एक दो जन का था कि अभी आया था कि वो एनरोल कर रहे हैं, बट मृदुला जी का कुछ हो रहा है. हाँ तो मैंने वही बोला कि एनरोल करके आप अंदर ग्रुप में अभी ज्वाइन कर सकते हैं. मतलब हाँ तो ठीक है. आप देख लेना, बैकएंड पे देख लेना. ठीक है. हाथ को क्या हुआ? Okay. So we will start now with our first, because it is the first day, okay, of the class. So I want to ask a very important question. आप में से कितने लोग करोड़पति बनने के लिए आए हैं? Let ma'am also come up. We will. Okay. Ma'am, can we start? Kiran ma'am, can we start? Yes, sir, I am ready. I was waiting for you. So Yes, thank you, sir. Thank you. Okay. So all of you, I remember you are okay with Hindi also, na? You understand Yes, Hindi? sir. Absolutely fine. Okay. So आप में लोगों ने धनलक्ष्मी का कोर्स ज्वाइन किया. I will speak in Hindi because Hindi is a comfortable language for most of the people. Wherever you don't understand, I can speak in English also. I am comfortable with both the languages. Okay. So आप लोगों ने धनलक्ष्मी का कोर्स ज्वाइन करा. कितने लोगों ने करोड़पति बनना? How many of you want to be turned to become a करोड़पति? No? Very dicey question. No, it's a very simple question. Yes or no? I want to be a crorepati. I don't want to be a crorepati. यस सर, उसीलिए ज्वाइन किया. यस वी वांट टू. देखो वैशाली तो इज वेरी वेरी गनिंग. वो कहती है मैं Yeah, जैसे I'm ही कोर्स करूंगी, जैसे ही मैं कोर्स करूंगी मैं करोड़पति बन जाऊंगी. सर आपकी ब्लेसिंग्स है तो बट ऑब्वियस आई माय थिंग्स आर गेटिंग सॉल्व, तो मुझे वो टेंशन नहीं है. आप रेमेडीज देंगे वो वर्क करती है मेरे लिए. ठीक है. सो आई हैव अ ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन यू. Okay. चलो. So we will start with a small introduction of both of you, and then we will start our course formally. Okay. So welcome once again to the Dhanlakshmi Day 1 course. So Vaishali, you start with your introduction and a small introduction about you, and then Kiran ma'am, you can take it over. Yes ma'am. बताइए. हेलो मैम, मैं बड़ौदा से हूँ. मेरा नाम वैशाली है और मैं सर के साथ ये 7th कोर्स कर रही हूँ. मैं 7 क्लासेस कर चुकी हूँ, अलग अलग कोर्सेज कर चुकी हूँ. प्लस आई एम अ मदर, आई एम अ हॉलीडे प्लानर. बट ये कॉस्मिक चीज़ों में कुछ मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था और घूम फिर के मुझे सर एक बार क्लिक हो गए साल भर पहले और मैं सर के साथ तब से जुड़ी हुई हूँ. सो आई एम वेरी मच ब्लेस्ड कि मुझे सर से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली हैं और मैं और सीखना चाहूँगी. जो जो मेरे पेंडिंग थिंग्स हैं और जिसमें क्यूरियोसिटी मुझे है, मैं और सीखना चाहूँगी सर से. Yes Kiran ma'am. मैं किरण हूँ. I have 2 children, mother of 2 girls, I can say. And basically मैं होम मेकर only.
These Okay. days, I learned tarot card reading from Karthik Mukherjee, sir, and I started tarot card reading. But Hmm. till that, I feel I need more intuitiveness Hmm. and more connection with the cards, which I am not right now experiencing. Hmm. Sometimes I feel the reading is going wrong. Hmm. I don't know. So I want to improve my intuitiveness, and I want to, Sure. come up in this particular journey. मुझे Hmm. वास्तु भी सीखना है, everything I want to learn. Good. Good. Related to astrology. So all of you, both of you who have joined today, and there is third person who is not joined by chance. I think he will see Joining the. in 2 minutes. He was out, so he's joining in 2 minutes. It's okay. So all those who have joined, believe you me, it is not you who have selected this course. This course has selected you. Ma Lakshmi, we are doing a course. We are starting this course on a Saturday. So I am just want to speak about something about Saturday. All of you, fear for Shani. Shani ka din hai. My Lagna is Shani. My Rashi is Sunny. I am a pure Shani by my nature. I am a very strong-headed person, very strong, determined. I don't give up so easily. So what does Shani talk about? Why we have chosen Shani today? Shani gets exalted astrologically in a sign called Libra, which is the sign of Venus. And Venus is Ma Lakshmi. That means the karmically correct money that you have earned is the highest amounted money in your home. जब भी हम कोई कुकर्म कुकर कोई कभी भी गलत चीज से किसी को मिसलीड करके किसी को धोखा देके किसी को गलत दृष्ट करके किसी को आधी अधूरी बात बता के जाने अनजाने में करते हैं तो वो पैसा हमें फलता नहीं है। लक्ष्मी की एक बहन है अलक्ष्मी। जिस घर में नारी की इज्जत नहीं होती, जिस घर में बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, जिस घर में माँ बाप को पूछा नहीं जाता, उस घर में अलक्ष्मी विशाल रूप से वास करती है। और वहां कभी भी पैसा नहीं फलेगा। आपका सारा पैसा मेडिसिन में, लोन्स में, कर्जों में, लोगों को डिस्प्यूट्स को हैंडल करने में, लीगल एंटिटीज में, इनमें ही खर्च होगा। आपको किसी का भी घर चेक करना हो कि इसके घर में पैसे के हालात कैसे हैं, सिर्फ 3 बातें चेक करिएगा उनके घर में। उनके घर में लेडीज की कैसी हालात है, बच्चों की कैसी हालात है, उनके घर की किचन कैसी है और उनके घर का बाथरूम कैसा है। ये 4 चीजें आप चेक कर लीजिए, आपको उनके घर का मनी स्टेटस पता चल जाएगा। बाथरूम इज वन थिंग जो जितना साफ रखता है उतनी अच्छे तरीके से मनी मैनेजमेंट होता है। क्योंकि आपको खर्चने के लिए क्या चाहिए? पैसा। एंड व्हाट डू यू फ्लश? व्हाट इज नॉट नीडेड। जब आपकी वो एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है तो आप क्या करना शुरू कर देते हो? आपकी रिसोर्सेज क्या हो जाती हैं? शुरू फ्लश करना शुरू हो जाती है, जाना शुरू हो जाती है आपसे। चाहे वो हेल्थ के फॉर्म में हो, चाहे रिलेशनशिप्स के फॉर्म में हो, चाहे पैसे के फॉर्म में हो, चाहे हैप्पीनेस के फॉर्म में हो, चाहे हार्मनी के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, स्माइल के फॉर्म में हो, वरीज के फॉर्म में हो डिप्रेशन के फॉर्म में हो, आपकी रिसोर्सेज जाया हो रही, खराब हो रही। पहला, आपको आज एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग ही मनी टिप से देता हूँ। द मनी टिप इज टेक अ क्ले पॉट। क्ले दिया ले लीजिए, उसके अंदर एक दालचीनी, जिसको आप सिनेमन बोलते हो, उसके 5 टुकड़े कर लीजिए। 5 लौंग, 5 इलायची, थोड़ा सा कैम्फर और देसी घी। ये आपने अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ सायकाल शुक्ल पक्ष के फ्राइडे में बर्न करना है। सायकाल शुक्ल पक्ष के फ्राइडे। शुक्ल पक्ष क्या होता है? जब चंद्रमा बड़ा हो रहा है, जब चंद्रमा पूर्णिमा की तरफ जा रहा है। ठीक है, फ्रॉम द न्यू मून टू द फुल मून। ठीक है, आपने फ्राइडे चूज करना है, फ्राइडे को करना है। उसके नीचे आपने अपनी मैनिफेस्टेशन लिखनी है। सपोज वैशाली सेज कि वैशाली को 2 लाख रुपया महीने का चाहिए, तो वैशाली विल राइट ऑन अ प्लेन पीस ऑफ पेपर
with a green pen or a red pen, I want 2 लाख रुपीज पर मंथ। वो विश को फोल्ड कर लेना 4 बार और दिए के बॉटम में, अंदर बाहर की तरफ, नॉट इनसाइड द दिया, रखना है। 11 दिन, 11 दिन तक, 11 बार आपने, 11 फ्राइडेज ऐसा करना है, 11 फ्राइडेज आपने ऐसा करना है। 11th फ्राइडे आप उस विश को दिए के नीचे से निकाल लोगे। दिया कैन बी सेम, अगर दिया खराब हो जाए तो नया दिया रख लीजिएगा, विश वही रहने दीजिएगा। ठीक है, आपने 11th फ्राइडे उस विश को उसी दिए में बर्न कर देना, उस विश को उसी दिए में बर्न कर On देना। 11 day we have to burn. बाकी 11th, सारे दिन दिए के हाँ नीचे रखना है। हाँ जी, 11th डे यू बर्न इट। एंड बर्न कर, नीचे। एक मिनट मैम, एक मिनट, बर्न करते ही जो उसकी राख है उसको यूनिवर्स में ब्लो कर देना, सेइंग दैट कि आई एम सबमिटिंग माई हाईएस्ट नीड टू द यूनिवर्स टू सपोर्ट मी। ठीक है, नाउ द दिया जिसमें आप वो जला रहे हो वो एक छोटा हवन है। आपने इंग्रेडिएंट्स डाले, हवन किया। इस समय जब आप पहली बार दिया लगा रहे हैं, आपको एक मंत्र बता रहा हूँ। ओम श्रीम 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 श्रीम, ये आपने बोला। उसके बाद ओम महालक्ष्मीयाय नमः, उसके बाद ओम महालक्ष्मीयाय नमः, ये आपने मंत्र चैंट करना है, ये 11 टाइम्स। पहले ओम श्रीम 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 9 बार बोल लिया, ये 9 टाइम श्रीम बोला। ओम श्रीम 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 श्रीम, उसके बाद ओम महालक्ष्मीयाय नमः 11 टाइम्स। ये प्रोसेस आप पूरा करिए एंड यू विल सी योर सेल्फ अ मार्केबल चेंज इन योर ओन वर्क रिसोर्सेस। वो रिसोर्स हैप्पीनेस के फॉर्म में आ सकती है, वो रिसोर्स हेल्थ के फॉर्म में आ सकती है, वो रिसोर्स मनी के फॉर्म में आ सकती है, वो रिसोर्स ग्रोथ के फॉर्म में आ सकती है, वो रिसोर्स अ गुड जॉब इन योर लाइफ के फॉर्म में आ सकती है, वो रिसोर्स रिलेशनशिप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छा हो जाए या किसी के साथ अच्छा हो जाए उस फॉर्म में आ सकती है, बट वो रिसोर्स आएगा जरूर। सर क्वेश्चन है हाँ जी, सर, वो जो हम ले रहे हैं इंग्रेडिएंट्स वो एवरी फ्राइडे बर्न करना है, बस जो नोट है वो लास्ट सेम फ्राइडे को बर्न करना लास्ट फ्राइडे को डन करना। है। ओके। ठीक है, नमस्कार भरत जी। मेरा भी वही क्वेश्चन है। हाँ जी, बोलिए। वो ये जो दिया है जिसके नीचे हमने छिट तो लगाया, वो एवरी टाइम डोंट वी नीड टू वॉश इट? नहीं, वॉश नहीं करना उसे। उसको आपका ऐसे दिया ही अगर, रखते आपका जाओ। दिया अगर आपको लगे बहुत भद्र हो गया है, काला हो गया है, हम्म, खराब हो गया हम्म, है, आप नया दिया ले आइए। उस दिए को रखिए इकट्ठा, वहीं रखिए, पास अपने रखिए। हम्म, लास्ट डे अगर आपके सारे दिए, मान लो 11 दिए इकट्ठे हो गए, आपने या तो उसको पानी में बहा देना है या क्रश करके किसी गार्डन के अंदर मिट्टी में डाल देना है। ठीक है, बट सर आपने एवरी उसे टाइम जो डस्टबिन ऐश। में नहीं फेंकना, आपने उसे टॉयलेट में नहीं फेंकना, आपने किसी गार्बेज सेंटर में नहीं फेंकना, आपने कहीं नहीं फेंकना ऐसा। ठीक है, वी आर गिविंग द अर्थ टू द अर्थ। याद रखिएगा, आपके घर की स्टेबिलिटी अर्थ है और आपके पास अर्थ बहुत फॉर्म में है। अर्थ इज द मदर ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। हमें जो कुछ भी आज मिल रहा है जीवन में, आर्टिफिशियल, क्रिएटेड, मैन क्रिएटेड, नेचर क्रिएटेड, इज ऑल बाय अर्थ। Even the alloy that you have in your home is made from the natural mineral only. Your body has also got a dhatu. Body also has got an earth element into it. So ये बहुत गहरी साइंस है। लक्ष्मी को, इस कोर्स को समझने के लिए ये बेस बनाना बहुत जरूरी था आपका, बिकॉज आपको नहीं तो इस कोर्स की डेप्थ नहीं समझ में आएगी। क्योंकि इसके बाद जब मैं रेमेडीज बताना शुरू करूंगा ना, वो बड़ी इजी लगेंगी आपको, लेकिन आपको रीजन पता होना चाहिए कि ये रेमेडी काम क्यों करेगी। हमें जब किसी चीज का क्यों नहीं पता होता ना, तो हमारा बिलीफ नहीं बैठता। भरत जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। थोड़ा लेट हो गया, बाहर था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप थोड़ा सा रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा जो हमने बातचीत कर ली, बाकी ओके। का हम आगे चलेंगे। ठीक है, हाँ। चलिए ओके। आज का। सर क्वेश्चन था हाँ जी, बोलो क्वेश्चन। सर, जो ऐश होगी एवरी फ्राइडे का वो ब्लो करना है या लास्ट डे सीधा ब्लो लास्ट में, करना है? लास्ट में वो इकट्ठा करते जाना है। इकट्ठा करते जाना। इकट्ठा यानी सर एवरी वीक वी डोंट चेंज द पेपर ना। एक ही बार हम पेपर लगा के रखते हैं और पेपर 11 तो एक बार फ्राइडे। लगेगा, जो अंदर की वो ये कह रही है, जो बचे का रेसिड्यू है वो उसी दिए के साथ आप 11 दिए ले लो, नए दिए ओके। लगाओ हर बार। आप 11 दिए ले लो, 11 दिए में जो पुराना दिए का ऐश है उसको एज इट इज रख लो, एक पेपर, एक अपना बैग के अंदर डालते जाओ।
लास्ट डे उसको विसर्जन भी कर दो और उसको ब्लो भी कर दो, उसकी ऐश को, खत्म हुआ। ठीक है। आप देखो, कोई भी चीज होती है ना, वो आपके बिलीफ सिस्टम पे है। इफ आई टेल यू कि आप सिर्फ फलाना कोई जो भी नाम आप गॉड को बिलीव करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने अपने तरीके से गॉड को बिलीव करते हैं और नाम लेते हैं, आप उस एनर्जी में बिलीव करते हैं, उसका एक नाम रख दिया आपने। उसका नाम आपने राम रख दिया, उसका नाम आपने कृष्णा रख दिया, आपने शिव रख दिया, साईं बाबा रख दिया, कुछ भी रख दिया, और आपका बिलीफ सिस्टम है। जब आप बिलीफ सिस्टम के साथ कोई चीज करते हैं तो वो चीज आप पे काम 200% करती है, 200%। तो इंपॉर्टेंट इज टू हैव दैट बिलीफ। इफ यू डोंट, मैंने बहुत सारी रेमेडीज आपको बताऊंगा, अगर आपको किसी भी रेमेडी पे फेथ नहीं आ रहा या आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आप छोड़ दीजिए वो रेमेडी, मत करिए। हे, ऐसा नहीं है कि अगर आपने वो रेमेडी नहीं करी तो कुछ गलत हो जाएगा, कुछ गलत नहीं होगा। और इनमें से किसी भी रेमेडी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इनमें से किसी भी रेमेडी या रिचुअल का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये आपको हार्म नहीं करेंगे। आपको रिजल्ट आपके एक्शंस के हिसाब से, आपकी दशाओं के हिसाब से, और कितना फेवर आपको देना है। अगर आप 100 करोड़ का की बात कर रहे हैं तो आपको खुद को भी 50-60 करोड़ का होना पड़ेगा, तो आप 100 करोड़ मांग सकते हो। आप 1 करोड़ भी नहीं कमा रहे हो और आप 100 करोड़ मांग रहे हो, तो एक इम्प्रैक्टिकल अप्रोच है इन आस्किंग। ग्रीड के लिए कोई रेमेडी नहीं है, नीड के लिए रेमेडी है। ग्रीड के लिए, लालच की कोई रेमेडी नहीं है, नीड की रेमेडी है। आपका हाईएस्ट नीड जो है, आपका हाईएस्ट पर्पस जो है, उसके लिए हर रेमेडी काम करती है। जब हमें मिलना शुरू होता है ना, तो हम कहते हैं थोड़ा सा और मिल जाए, थोड़ा सा और। अरे डायमंड छोटा वाला लिया था, थोड़ा बड़े वाला ले आती हूँ। थोड़ा हीरे का हार बड़ा मकान जो है ना, 3 BHK, पता है, सेटलमेंट हो गया, पेरेंट्स को कमरा मिल गया, बच्चे को कमरा मिल गया, खुद को कमरा मिल गया। नहीं, अब मेंशन होना चाहिए था, फार्म हाउस होना चाहिए था, रहना 3 लोगों नहीं है। तो नीड है, हम ग्रीडी हो जाते हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स, मीन्स हमें सेल्फ कंट्रोल नहीं आता, इसीलिए तो हम ह्यूमन है। यू नो व्हाई आर वी कॉल्ड ह्यूमन बींग्स? कोई बता सकता है हमें ह्यूमन क्यों कहा जाता है? एनीबडी वुड लाइक टू ट्राई? व्हाई आर वी कॉल्ड ह्यूमंस? मन, अगर उसको दो करेंगे हम्म। तो मन को कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऑल टाइम, एज पर इकोनॉमिक्स, मानव तो ऐसा ही है ना। इफ वन नीड सप्रेसेस, यू विल कम अप विथ न्यू वन। व्हाट इज तो ह्यू? हमारा ह्यू। मन ऐसा ह्यू, यू नो मैं बोल नहीं पा रही हूँ। चलो मैं समझाऊँ। समझ में आया आपको हाँ मैं जी, हाँ जो जी, मैं बताना समझ चाह पा रही रहा हूँ? हूँ आप क्या कह रहे हो। तो हम्म। चलिए, तो ह्यू का मतलब क्या हुआ? ह्यू इज अ वर्ड फ्रॉम ग्रीक। ह्यू को बोला गया गॉड, अ डिवाइन पावर, and a man who is under that divine power. That is why we are human. इसीलिए हमें क्या बोला गया? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो ब्रह्मा द्वारा स्थित हो, ब्रह्मा ने ब्राह्मण, ब्राह्मण, ब्रह्मा के मन से बना हुआ मनुष्य, ब्राह्मण, जिसको ब्रह्मा ने रचित किया हो अपनी संवेदना में, अपनी सोच में। आप हैरान होगे कितने लाख लोग हैं और हम सिर्फ 5 तरह के बेसिक ऑरास के अंदर फंसे हुए, के अंदर बटे हुए हैं। देर आर 5 डिफरेंट ऑरा टाइप्स, जिसके अंदर 8 जितने भी लोग हैं इस धरती पे है, वो सारे उन 5 ऑरा टाइप्स में डिफरेंशिएटेड है। इतना वाइड और इतना अद्भुत रिलेशनशिप है हमारा सृष्टि के साथ। चलिए, तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। माई नेम इज निकेत कपूर, आई एम बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली। आई डू कंसल्टेशन एंड टीचिंग इन फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। इसमें ऑरा स्कैनिंग नहीं लिखा हुआ, वी डू ऑरा स्कैनिंग ऑल्सो, वी डू ऑल्सो ग्राफोलॉजी एनालिसिस is, and we tell through graphology we also tell medical problems. So that is our specialty. We are ISO certified and MSME registered. I have a background of 22 years of management experience now, rather 25 years. Yes, and I am practicing cosmic modalities from last 10 plus years. I am also involved in research of astrology facts and interpretations. I am a motivational speaker and a mind counselor. And research is my passion. So basically, I was a researcher. My mind
हैड मेनी वाइज। और मैं हमेशा मानता हूँ जिसके दिमाग में ना बहुत सारे वाई होते हैं ना, वो ऑकल्ट साइंसेज में बहुत अच्छा करता है। अगर आपके वाई खत्म हो गए ना, तो आप ग्रो नहीं करोगे, आप खत्म हो जाओगे। सो नेवर किल योर वाइज। डोंट थिंक इट इज अ स्टूपिड क्वेश्चन, इट इज द करेक्ट क्वेश्चन, बिकॉज यू डोंट हैव एन आंसर टू इट. So there is no question which is stupid question. Every question is a good question. Even if you ask me what is your name, tell me the spelling of your name. Name. That is also a right question. It's okay if you don't know my spelling. It's okay if you don't know why are you here. ठीक है. तो डे वन स्टार्ट करेंगे. इस कोर्स में हम इसकी जर्नी थोड़ी सी समझ लेते हैं. हम हिस्ट्री ऑफ मनी को पढ़ेंगे, माइथोलॉजी ऑफ माँ लक्ष्मी को पढ़ेंगे, रिलेशनशिप ऑफ वीनस और गॉडेस लक्ष्मी को पढ़ेंगे, मनी ब्लॉक्स और हमारे सबकॉन्शियस के साथ उसका लिंक क्या है, हमारी लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस क्यों होते हैं, इनको नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स को रिमूव कैसे करना है, इंडिकेटर्स ऑफ मनी इश्यूज क्या है, कॉमन बिलीफ और रियल ट्रुथ क्या होता है. उसके बाद रेमेडीज शुरू होंगी, बेसिक और एडवांस रिचुअल्स बेस्ड ऑन एफर्मेशंस, एंजल रिचुअल्स, एनर्जी सर्कल्स, बेसिक स्पेल्स, एडवांस स्पेल्स, स्विच वर्ड्स, ग्रेबोवी कोड्स, वास्तु, वैदिक मंत्रास, जोडियक यंत्रास बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड गोमती चक्रास. So these are the basic things that we will cover in this particular journey of 7 days. ठीक है. We will initially we are having one class a week. Later we will shift it to 2 classes a week. ठीक है. So I will try to shift it as soon as possible. Well, as because there is a marriage astrology course going on, which is going to get finished. So I will get that window available. And there is another course which has been shifted to. We can have 2 classes also. Can we do a class on Saturday at 7:30 and one class on Wednesday at 9 p.m.? If it is okay with 9 all of p.m.? you. 9 p.m. No. Wednesday or Thursday 9 p.m. No. 9 p.m. will be too late, sir. Actually, kids will go to school at 7 in the morning. हाँ तो And 10:33 कर देंगे मैम. 10:30 से पहले कौन सा होता है? I don't think I can. देख लीजिए पॉसिबल है. Okay, I'll try. If it is possible, then we can. Otherwise, then we will have to wait for the marriage astrology to finish to have a 7:30 clock. आप लोग जो बोलेंगे मैं वो फाइनल कर दूंगा. बिकॉज आई वांट टू डू इट एमिकेबली. भरत जी. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. वैशाली, यू हैव अ प्रॉब्लम इन 9 o'clock? सर चलेगा, I'll adjust, not an issue, one day का. Kiran ma'am, can you manage one day for 9 o'clock and one day for 7:30? That is fine. 9 o'clock के दिन 1.5 hour के प्लेस में 1 hour लेंगे आप? कोशिश करूंगा मैम. मेरी मैम, मैं नॉर्मली क्या होता है कि मैं थोड़ा सा ना खराब वाला टीचर हूँ. तो मैं 1 घंटा बोलता हूँ तो मैं 1.5 घंटा बच्चों से खींच लेता नहीं, हूँ. प्रॉब्लम ये हाँ. ऐसा नहीं है. These days, yeah, even I was not very well, and my dad is तो also. अभी हम 9 बजे का स्टार्ट करते हैं. जब मेरा मैरिज एस्ट्रोलॉजी खत्म हो जाएगा तो वो 9 बजे वाले स्लॉट को 7:30 पे शिफ्ट कर देंगे. So I am juggling between number of things actually. My dad is a cancer patient. I am not well, and I recently shifted to Hyderabad. No, Actually, I understand I that. was What in I'm saying, Pune for 20 years. what I'm saying is that let us start with 7:30 and 9. जैसे ही मेरा मैरिज एस्ट्रोलॉजी खत्म होगा हम 7:30 पे शिफ्ट कर लेंगे. ठीक है. ठीक है ना. फिर हम फ्राइडे 7:30 कर लेंगे. फ्राइडे सैटरडे 7:30 हो जाएगा. ठीक है. तो रात होते होते मेरा एनर्जी डाउन हो जाता है. मैं क्या? समझ गया आपकी बात को. आई अंडरस्टैंड योर. आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग. हम तो एक एक 2 हफ्ते के लिए एडजस्ट करो. उसके बाद मैक्सिमम 2 क्लासेस एडजस्ट करना पड़ेगा. तीसरी क्लास में सेट हो जाएगा. श्योर ठीक श्योर है. विल ओके. चलिए. ओके. सो व्हाट इज मनी हिस्ट्री? मनी सबसे पहले एक एक्सचेंज का मीडियम है. यानी कि जिससे हम एक ऐसा रिसोर्स जिसको देने के देकर हम कुछ ले सकते हैं. ऐसी कोई भी चीज जिसको दे के कुछ और लिया जा सके वो आपके लिए मनी है. ठीक है. तो इट अलाउज पीपल इन बिजनेस टू ऑब्टेन व्हाट दे नीड टू लिव. आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पैसा देते हैं, पेटीएम से पेमेंट करते हैं, जीपे से पेमेंट करते हैं, फोन पे पेमेंट करते हैं, एटीएम से पेमेंट करते हैं. आप क्या कर रहे हैं? मनी को यूज कर रहे हैं और अपने लाइफ की लाइविंग को ले रहे हैं. पुराने जमाने में बार्टर होता था कि आप मुझे चावल दे दो, मैं आपको दाल दे देता हूँ. बार्टर सिस्टम. या आप मुझे कॉपर दे दीजिए, मैं आपको सोना दे दूंगा. हाँ. या आप मुझे औजार दे दीजिए और मैं आपको उसकी जगह अपने घर का धान दे देता हूँ. तो देयर वाज अ बार्टर सिस्टम. चीजें एक्सचेंज होती थी. उसके बाद गोल्ड और अदर प्रीशियस मेटल को भी मनी की कैटेगरी में लिया गया कि लोग कहते थे कि हाँ
अगर आप मुझे इतना गोल्ड दे देते हो तो मैं अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूंगा, या मैं अपनी बेटी की, इवन डॉटर वॉज टेकन ऑल्सो एज एन पार्ट ऑफ रिसोर्स फोर्स, कि हाँ अगर आप मेरे को रक्षा करने की, एक राजा को कहा जाता था कि जो पंडित थे या ब्राह्मण थे, वो कहते थे कि अगर आप मेरी रक्षा करने का वायदा करते हैं तो मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करा दूं, या मैं आपको इतना दहेज दे दूं या डॉरी दे दूं। सो एक फियाट मनी था विच वॉज लाइक गवर्नमेंट की स्टैंप होती थी, ही दैट इज नॉट बैक्ड बाय फिजिकल कमोडिटी, जो किसी फिजिकल कमोडिटी से नहीं था, बट एक गवर्नमेंट की स्टैंप, जिस भी कागज पे स्टैंप लगी होती थी, पट्टा लिखा होता था, वो कहते थे कि ये गवर्नमेंट का करेंसी है, अगर हमारे पास ये कागज पड़ा हुआ है तो हम कभी भी इसको एनकैश कर सकते हैं। तो एक तरीके का वो भी एक मनी था। अब ऑल मनी एक यूनिट ऑफ अकाउंट है, एक ऐसी चीज जिससे हम किसी भी चीज की गणना कर सकते हैं, किसी भी चीज को चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर कितनी पावर है, उसके अंदर कितना कैपेबिलिटी है। आप अपनी असेसमेंट, खुद की असेसमेंट या किसी की भी असेसमेंट, उसकी मनी पावर से करते हो, कि उसके पास कितनी गाड़ी है, कितना बड़ा घर है वो कौन सी जगह पे रहता है। अब आपके एरिया में जो सबसे रिच घर में रिच एरिया होगा, अगर कोई आदमी कहेगा जी मैं वहां पे रहता हूँ, तो आप उससे ये नहीं पूछोगे आपका घर 2 BHK का है 3 BHK का है। आप उसे बोलोगे कि हाँ रे इज लिविंग इन अ पॉशेस्ट एरिया, सो मैं पैसे वाला आदमी होगा। लेकिन एक आदमी ऐसी जगह रहता है जहाँ स्लम एरिया है, तो आप उसको, उसकी मॉनेटरी असेसमेंट उसके रहन सहन से कर लेते हो। करेक्ट। सो इट इज एन यूनिट टू अकाउंट फॉर, इट इज अ यूनिट टू अंडरस्टैंड द स्टेटस ऑफ अ पर्सन और इज बाइंग थिंग फॉर दैट थिंग, राइट। तो माँ लक्ष्मी, व्हाट इज माँ लक्ष्मी? माँ लक्ष्मी इज द वाइफ ऑफ लॉर्ड विष्णु। इनके दूसरे नाम क्या हैं? इनका नाम है भार्गवी, इनका नाम है कमला, नारायणी, पद्मा, इनका नाम है सिरी। कंपनी नेम, माय ऑर्गेनाइजेशन नेम इज सिरी, सिरी कॉस्मिक कंसल्टेंसी एंड कोचिंग। I have kept it on Siri because I am a follower of Mahalakshmi, and Mahalakshmi is my deity, my Ishtadev. Eh, So I follow Vishnu, Shiva, and Mahalakshmi. These are the three deities which I worship by heart. And I sing, Krishna is my Sakha. I have taken Krishna as my Sakha, right? So in the Devanagari language, it is called Lakshmi. He. In affiliations, it is in Vaishnavism, Shaktism, Tridevam, Adishakti, Ashtalakshmi. These are the various names. Names it is called. His adobe is Vakunt or Manidvipa. And Manidvipa is the land depth below the grounds of sea. And grounds of sea you don't know. What is the ground of sea? What is the depth of sea? You don't know. So what does it, why this information is important to you? Do you know depth of your potential? Are you working at best of your potential today? If I say so, a human mind also has an unlimited depth, unlimited potential. So the Mani Dvipa of your own brain and your mind helps you when you churn your potentials to the best. You get the Lakshmi out. You get the best of the resources out. That is why when a child is going for an exam, he says that put the best foot forward. अपना बेस्ट एफर्ट डालिए और अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आइए, यही हम बोलते हैं। तो उसके लिए, एक बच्चे के लिए लक्ष्मी क्या है? उसके मार्क्स, उसने जो पोजीशन अटेन करी। ठीक है। तो इसके लिए मंत्रा क्या है? ओम श्रीम श्रीम श्रीये नमः। व्हाट इज दिस? सेकंड इज ओम श्रीम महालक्ष्मीयाय नमः। दिस इज द मंत्र दैट यू चैंट 11 times every day also, irrespective of any day. You will see the blessings will flow your way. And try to chant this mantra by keeping a diya in front of you. That will improve the power. Diya of cow ghee. Diya of cow ghee. Especially in the Sandhya time, in the evening time, when the sun has not fully set and the night has not fully come. That is a time of Lakshmi. Why it has been given to Lakshmi? Can anybody tell? Why this time has been allotted to Lakshmi? Anybody has any light on this? Any story or any where somebody has heard anything? भरत जी, वैशाली, प्लीज वीडियोस खोल लीजिए। आप लोग वीडियोस खोलेंगे तो मेरे को कनेक्टेड ब्लैक बोर्ड्स ना मुझे डराते हैं। नरसिंह नरसिंह अवतार हुआ था। नरसिंह अवतार हुआ था। ओके। एनीथिंग एल्स? In a evening, the time which I am talking about, astrologically, it is the time of activation of Rahu.
planet 21। called Rahu, which is a demonic planet. So to control the demonic planet, the light diya is being put, and the Mahalakshmi removes the that transition time of day to the night. क्योंकि जब आप जितने आप देखो, कोई बहुत बेवकूफी इंसान होगा जो सुबह 10 बजे शराब पीता होगा, लेकिन शाम के समय आपको शराब पीने वाले बहुत दिखेंगे हम्म, जो कहते हैं अरे शाम हो गई, चलो लेट्स हैव टू लिटिल वंस फॉर द जॉय राइड, फॉर द हैप्पीनेस। जितने भी विलास के काम हैं सब शाम को किए जाते हैं अंधेरे के। राहुल। तो वो राहु एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा का प्रावधान दिया गया कि आप माँ लक्ष्मी को चैंट करिए, मंत्र चैंटिंग करिए, ताकि आपके अंदर का जो राहु है वो कंट्रोल रहे। और राहु कहाँ बैठा है आपके? यहाँ बैठा है, जहाँ लेडीज अपने बाल, पहले आपने देखा होगा पुरानी कथाओं में जेंट्स भी अपने बाल बांधते थे। वो क्यों बांधते थे? कि राहु कंट्रोल में रहे, पंडित लोग करते हैं। स्पेशली पंडित लोग, राइट। बट जनरली अगर आप आज भी कभी गुरुकुल में कैसे चले जाएंगे, वहाँ सारे बच्चे जो हैं अपने बाल बांध के रखते हैं। वो इस पोर्शन के बालों को हटाते नहीं है, बाकी सारे बाल उड़ा देंगे, लेकिन यहाँ थोड़े से बाल अपने रखेंगे, सो दैट द राहु इनसाइड देम इज कंट्रोल्ड एंड द गुरु तत्व इज एक्टिव। अच्छा। एंड लक्ष्मी वीनस से जुड़े हुए हैं, वीनस खुद एक गुरु है। वीनस, अगर हम जुपिटर को देव गुरु बोलते हैं, तो वीनस को, शुक्र को दमन गुरु बोलते हैं, देवते का गुरु। दैत्य गुरु बोलते हैं। तो दैत्य गुरु का काम, उनके पास क्या ऐसी शक्ति है? उनके पास संजीवनी विद्या है, हम्म, यानी कि वो मृत को जीवित कर सकते हैं। जिन राक्षसों ने बृहस्पति के खुद के पुत्र को काट के उनको खिला दिया, उस पुत्र को वापस अपने ही गर्भ से पैदा करने की ताकत है वीनस में। तो वीनस इज सो पावरफुल। और आपके घर का वीनस क्या है? जब एक लेडी अपने घर में खुश होती है तो वीनस एक्टिवेट होता है। जब एक घर साफ होता है तो वीनस एक्टिवेट होता है। जब एक किचन साफ होती है तो वीनस एक्टिवेट होता है। जब एक खाना अच्छे से लोग बैठ के प्यार मोहब्बत से खाते हैं तो वीनस एक्टिवेट होता है। जब आपके घर में गार्बेज नहीं पड़ा रहता तो वीनस एक्टिवेट होता है। तो दीज आर स्मॉल रेमेडीज, स्टार्ट डूइंग फ्रॉम टुडे। दिवाली आ रही है, घर में अनयूज चीजों को खाली करो। मैं आपका आधा घर खाली करा दूंगा, मैं लिख के देता हूँ। जो जो आपने संभाल के रखा हुआ है, अरे नहीं ये तो मेरी मम्मी का था, ये मेरे पापा का था, ये मेरे भैया ने दिया है, चाहे आपने उसको पिछले 5 साल में यूज नहीं किया, प्लीज रिमूव इट। जितने डिजिटल गैजेट्स खराब पड़े और यूज नहीं कर रहे आप, या तो डोनेट कर दीजिए या फेंक दीजिए। जो चप्पलें आपने, लेडीज खासकर 20-20 सैंडल लेती हैं, राइट, और पहनती दो है पूरे साल में वो सैंडल, अरे वो एक दिन शादी आएगी मैं उस दिन पहनूंगी, उस दिन भी वो एक ही पहनेगी, लेकिन सैंडल 20 है। जेंट्स परफ्यूम्स रखते हैं 6-6, यूज नहीं करते। कॉस्मेटिक्स जो खराब हो गए पहनिए। कॉस्मेटिक इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। ऑल द अरोमाज इन योर होम आर द सिंबल ऑफ वीनस। इसीलिए तुलसी का पौधा, जिसके भी घर में लक्ष्मी का अभाव है या पैसे की प्रॉब्लम है, घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तुलसी रख दीजिए। यू विल सी अबंडेंस फ्लोइंग इनटू योर होम। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तुलसी रख दीजिए। फ्राइडे के दिन व्रत करिए, आपके घर में लक्ष्मी का प्रवाहन अच्छा होगा। आप अपने को सात्विक रखिए। आप अपने को बिना प्याज, बिना गार्लिक के, बिना नमक के खाना खाइए, सात्विक खाना खाइए, फ्रूट खाइए। आपका अभी नवरात्र चल रहे हैं, कार्तिक के महीने में तुलसी के पास दिया जलाइए और शालीग्राम का साथ मोली बांध के कार्तिक की कथा पढ़िए शाम के समय। बेस्ट रेमेडी फॉर लक्ष्मी, बेस्ट रेमेडी, कार्तिक कथा आफ्टर पुटिंग अ दिया इन द इवनिंग, एंड शालीग्राम along with तुलसी। शालिग्राम क्या होता है सर? वो एक स्टोन शालीग्राम होता एक ब्लैक स्टोन आता है, जैसे स्टोन आपका आता है। शिवलिंग होता है, ऐसे ही विष्णु जी का भी एक स्टोन है जो शालीग्राम फॉर्म में है। शालीग्राम इज अ फॉर्म ऑफ विष्णु ओनली। लेकिन वो कहाँ मिलता है? इजीली मिल जाता है, मैं मंगवा दूंगा आपको अगर आपको चाहिए तो। आई कैन गेट यू, आप जो साइज बोलोगे वो साइज मिल जाएगा, बहुत इजीली मिलता है। इट्स नॉट वेरी कॉस्टली ऑल्सो। ठीक है। ऐसे ही एक स्टोन आता है नर्मदेश्वर, विच एवरीबडी शुड हैव इन होम। नर्मदा के धरातल से निकलता है वो नर्मदेश्वर, विच इज ए वेरी वेरी गुड स्टोन टू हैव इन योर कैश बॉक्स। अगर आप उसका ब्रेसलेट पहनते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है।
इसके सिंबल्स हैं पद्मा, लोटस, सो हैविंग, इसलिए महालक्ष्मी को लोटस चढ़ाया जाता है। इनका सिंबल है काउंच। अगर आपने घर में शंख रखना है तो शंख में पानी जरूर डाल के रखिए या उसको पानी में रखिए। जर्नली ऐसा सूखा हुआ शंख मत रखिए। बहुत से लोगों की आदत होती है, वो गोवा जाते हैं और सी शेल्स को इकट्ठा करके लाते हैं। जो ये ड्राई सी शेल्स होते हैं, ये भी फॉर्म ऑफ राहु है। सो इफ यू हैव ड्राई सी शेल्स, if you have a foreign currency in your home, if you have a foreign currency in your home, then also remove that foreign currency and convert it to the Indian currency. ठीक है? हाँ, बोलिए, बोलो विशाल। शंख रोज बजाते हैं, उसको भी पानी में रखना होता है? नहीं, जो आप रोज बजाते हो उसको नहीं। उसको धो के मैं बजाती हूँ तो चलता है ना वो सर? बिल्कुल चलता है, गंगा जल के साथ साफ कर दूसरा, मेरे लीजिए। पास कॉइन कलेक्शन में फॉरेन करेंसी ओल्ड है, तो वो मुझे निकाल देनी चाहिए बिल्कुल या निकाल रखनी? देनी चाहिए। उसको एनकैश करके पीले रंग के गुल्लक दैट इज के। वेरी ओल्ड। मेरे दादा जब सिंगापुर गए तो वो तो कोई बंद भी हो गई है। कोई बात नहीं मैम, वो सिंह तभी तो किसी काम की नहीं, तभी तो पैसे रखे हुए हैं। असली ओके, जड़ तो आपने बताइए मेरे को। ठीक है? आई रिमूव इट। उनको रिमूव करो, अगले दिन से अबंडेंस खुलेगा। जी आप खुद ही मेरे को थैंक यू बोल दोगे। मुझे नहीं बोलोगे, ऊपर वाले को बोलोगे, टू फॉर गिविंग यू विजडम कि आपने ये ग्रुप के अंदर पूछ लिया। जिसके घर में भी जी फॉरेन करेंसी पड़ी है, जिसको आप आज यहाँ इस कंट्री में यूज नहीं कर सकते, इधर कन्वर्ट दैट करेंसी टू द इंडियन करेंसी एंड यूज इट, और जस्ट फ्लो इट इन द वाटर। ओके अगर कोई नहीं लेता उसको, तो फ्लो इट इन द वाटर, let it go wherever it has to go, wherever it has to be explored. ओके। Stagnant energies blockages क्रिएट करती हैं। Stagnant thoughts सिर दर्द करती हैं। मैम थकी हुई हैं। अभी मैं 5 मिनट के अंदर मैम को एनर्जाइज कर दूंगा। क्लास खत्म होने से पहले मैम को एनर्जाइज करके भेजूंगा। हाँ, लिख के देता हूँ। शी विल से कि सर मेरा सिर दर्द हट गया, मेरी थकान हट गई। ठीक है? 24/7 नाचने वालों में से एक हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि क्लास अटेंड करो कि नहीं, लेकिन बैठ गई तो अच्छा लग रहा है। वो आ जाएगा, अपने आप आएगा। लंबी लंबी ब्रीथ लेते रहो, बड़ी बड़ी ब्रीथ लो, पूरी ब्रीथ लो, साथ सर साथ लेते रहो, और शी अंदर और। कॉल्ड मी एंड सेड कि मैं अटेंड करूं या नहीं, मेरा मन नहीं है। मतलब आप एक बार अटेंड करिए, रिकॉर्ड खाली ऑफ करके सुनिए, आपको अच्छा लगेगा, आप ऑन कर लेंगे वीडियो। मैंने इनको कहा था। चलो, आप लंबी लंबी सांस लेते रहो और अंदर सिर्फ ओम बोलते रहो। यू विल गेट द एनर्जी बैक। आपके सारे ग्लैंड्स खुल जाएंगे। ठीक है? माउंट इनका है गरुड़। गरुड़ पे बैठती हैं, आउल पे बैठती हैं। इफ यू कीप अ गोल्डन आउल इन योर वेस्ट डायरेक्शन, यू विल ऑलवेज गेट गुड प्रॉफिट्स इन योर बिजनेस। ठीक है? बस शर्त है वहां टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है? एलिफेंट विद अ ट्रंक हाई, हाई should be, but not ferocious. Happy elephant. Ferocious element is for war, for killing someone. Right? Lion. Lion, which is again Mars, Devi's a dog, right? Shakti is a dog. Festivals: Deepavali, Sharad Purnima, Vara Lakshmi Vratam, Navratri, Sakranti. These all are parts of festivals related to Mahalakshmi. So if you do vratas, like I am having a Navratras, all 7, all 9 Vratras, 8 Vratras. Ashtami, we will open our vrat. Right? So I am only on fruits. And you're not feeling that I'm not having any energy. So my energy should be lowest compared to all of you. But my energy is the highest compared to all of you. Siblings are Alakshmi. She is wife of Vishnu. She's children are Kamadeva, which gives you the highest desires. All the desires are given to you by Kamadeva. Bala and Utsha from the Vayu Puran, they are the children. Then Kardama, Shiklita, and 16 other sons in the Rig Veda are mentioned, which are the children of Mahalakshmi. Devasena and Vali are the daughters as per South Indian traditions. They are worship. So Kirina ma'am is from South India, she can validate that. That yes, they are worshipped as a Mahalakshmi's representations. Right? And one of the most beautiful temples of India are in southern India. So if you really want to see the culture and the way a right worship has to be done, go to South India. The traditional following is very, very good in South India.
Right. Now, what is the relationship of Venus and goddess Lakshmi? According to Garuda Puran, Lakshmi is considered as Prakriti. Prakriti is Mahalakshmi. Prakriti is Shakti. So it is interactive. It is Siri, it is Bhu, it is Durga. It is Satvikin. There are three kind of energies, three forms it comes in. It comes in Sattva form. When you chant the mantras and when you call for the resources of the mind to increase your knowledge, that is also Lakshmi in the Sattva form. In the Rajas form, it is about the material assets that you accumulate. In the Tamas form, it is the greed and only possession about material success, not taking care of the human life. It is about that thing. So these are the three gunas that you have. It assists Vishnu and it always sits in the foot of the Vishnu. So that means when you want to worship, if you want to have Lakshmi in your house, you will have to have a Vishnu as a absolute energy in your life. And Vishnu is sitting on what? Vishnu is sitting on a most poisonous snake called Sheshnag with his fangs on his head. Right? That means to become the most righteous person in your life, you have to go through many pains and many challenges. That is your karma. The person who does not face the challenges in his life does not get Lakshmi. That is the reason that Saturn, who is the justice, who is the judge, gets strong in Venus sign. He judges your actions, right and wrong. So based on the weight, he gives you the result. Either you will conquer or you will get the punishment. Right? So Durga form represents power of to fight, conquer and punish. It will fight with the wrong people and it will contract you like a mother, protect the child. Mother is the highest, biggest form of Durga. And mother is Lakshmi. What do you say? हमारे घर में बेटी हुई, हमारे घर में लक्ष्मी हुई है. आप कहते हो अरे हमारे घर में खर्चा हुआ है. कोई बोलता है क्या? बेटी होती है तो कोई बोलता है कि हमारे घर में खर्चा हुआ है? नहीं. आजकल तो लड़कों पे ज्यादा खर्चा हो रहा है क्योंकि सारे लड़के सैलून जाते हैं, पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल सब कुछ कराते हैं. राइट? तो वो ज्यादा खर्चा करते हैं. मैं उस दिन देख रहा था एक लड़के का सैलून का बिल 15,000 रुपए का. भाई क्या कराया तूने 15,000 रुपए का? हाँ सर मैंने बॉडी वो भी कराया, बोटॉक्स भी कराया, ये भी कराया, वो भी कराया. हाँ. अब वो हो रहा है सब कुछ स्किन टाइप का. हाँ. हेयर क्लीनिंग और लेजर और पता नहीं क्या क्या. मैंने कहा यार मैं तो सिर्फ कटिंग करा के आया हूँ, शरीफ सा आदमी हूँ, मेरे से तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है. राइट? सो व्हाट इज Lakshmi is a good wife. What is Lakshmi? Lakshmi is a Shukra. If you have a good wife, want a good wife, worship Venus. एक लड़के के लिए अच्छी बीवी वीनस है. लड़की को अपने ससुराल में कैसा ट्रीटमेंट मिला, ये बहुत हद तक डिसाइड कर देगा कि घर में मदर को कैसे ट्रीट किया जाता है उसकी. अगर उसकी मदर के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं हो रहा तो उसको ससुराल में भी सुख नहीं मिलेगा क्योंकि उस मदर ने कर्ज किया हुआ है. इसीलिए जब आप कहते हैं ना कि बेटियों को सुख नहीं मिल रहा, बेटियां परेशान हो रही हैं, तो घर में मदर कहीं ना कहीं कभी मिसट्रीटेड होती है. ठीक है. बट इफ यू हैव एन इवल आई ऑफ द वीनस तो आपको विकेड वाइफ मिलती है. वही लड़की पूरे घर को उजाड़ देती है, खराब कर देती है. जब आपको शनि सैटर्न की लक्ष्मी मिलती है तो क्या होता है, आप पॉजिटिव कर्मास के थ्रू वेल्थ अर्न करते हो, ग्रो करते हो और आपके कर्मास आपको ग्रोथ ला के देते हैं. लेकिन आप अगर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सैटर्न में आ जाते हो, गलत तरीके से काम करते हो, स्मगलिंग, गैम्बलिंग, मिसलीडिंग करते हो, तो वो पैसे आपको लीगल एंटिटीज के अंदर फंसा देते हैं, सिकनेस में फंसा देते हैं. दिस इज हाउ यू मैनिफेस्ट थ्रू कर्मास एंड द वे यू ट्रीट योर लेडीज इन योर होम. तो अगर आपको लक्ष्मी अच्छे करनी है, घर में जितनी भी लेडीज हैं, चाहे आपकी बुआ हैं, मासी हैं, कोई भी है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए. एक लेडी को भी दूसरी लेडी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि लड़के को ही करना चाहिए. जब एक बहू अपनी सास को रिस्पेक्ट नहीं देती तो वो कहीं ना कहीं अपने लिए भी एक इलनेस क्रिएट कर रही है, क्योंकि उसने भी, वो कहता है ना, सास भी कभी बहू थी. तो आपको कभी ना कभी सास खुद भी बनना है जाके. तो ये मैनिफेस्ट आपकी नहीं बन रही, आप न्यूट्रल हो जाइए. डोंट यूज बैड वर्ड्स, डोंट इल ट्रीट देम, डोंट डिसरिस्पेक्ट देम, create a distance, but don't use wrong words or wrong gestures. Even don't do back bitching.
ये कंट्री की प्रॉब्लम है हमारी। हमारे यहाँ बैक बेचिंग तो फेमस फेस्टिवल है। तो अरे वो उस पता क्या, अरे साथ वाली के ये हुआ, उस वाली के ये हुआ। अरे बाबा तेरे को, तूने उसकी इकोनॉमी चलानी है, टाइम है इतना आपके पास, मेरे पास तो नहीं है। मेरे घर में कोई भी आता है, आपको पता है साथ वाले का क्या हुआ, मैं कहा नहीं, उन्होंने मुझे इनविटेशन नहीं दिया बताने के लिए, तो मुझे नहीं पता और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है। आप में से कितने लोग न्यूज देखते हो? अच्छा चलो बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू वॉच न्यूज? न्यूज देखता है कोई? पूरा नहीं, बट गो थ्रू ऑनलाइन। हाँ भरत बोलो, बोलो बोलो हाँ, वो बोलो। न्यूज़ देते हैं, न्यूज़ देखते हैं, ऑनलाइन न्यूज़ देखते ऑनलाइन हैं। न्यूज देखते हैं। ईरान और उसका मैं वॉर ये हो रहा है, मान वो के चलता देखते हूँ हैं। कि मेरे पास जो न्यूज सबसे इंपॉर्टेंट गॉड ने मेरे लिए बनाई होगी, वो मेरे पास तक पहुंच ही हम्म, जाएगी। अभी गोविंदा ने अपने आप को गोली मारी, हाँ, वो कितने भी लोगों देखा। ने गोली लगी उसको, या उसने खुद को मार लिया, क्या स्कैंडलाइजेशन हुआ। 80% मार्केट गोविंदा डिस्कस कर रही है, अपने घर के गोविंदा को नहीं संभाल रही। हम्म, ट्रेजेडी है। वी आर यूजिंग आवर रिसोर्स ऑफ थिंकिंग, वी आर लूजिंग आवर रिसोर्स ऑफ टॉकिंग, वी आर लूजिंग आवर रिसोर्स ऑफ पॉजिटिव अलाइनमेंट्स। स्टॉप डूइंग इट, कोई फायदा नहीं। रेमेडी, आज की पहली रेमेडी, ओनली थिंक अबाउट दोज थिंग्स विच मैटर टू यू। ओके। Contribute to the society in a positive way rather than negative. Don't give opinions of those things which you are not fully aware of. I have not met Rahul Gandhi, so I can't say he is bad or he is wrong. But news ने जो भी उसकी इमेज बनाई है, पप्पू इमेज, that is news created. आप आज राहुल गांधी से मिलोगे तो हो सकता है उसकी कोई ना कोई बात आपको इंप्रेस कर दे, हो सकता है, राइट? दुनिया का सबसे बड़ा चोर भी किसी ना किसी के लिए अच्छा है, हो सकता है। राइट? विजय माल्या साहब यहाँ से सबको लूट पाट के भाग गए, तो किसी का तो भला करके गए होंगे, कोई तो कुछ ना कुछ कर रहा होगा, राइट? तो हर आदमी की दो साइड्स है। डोंट जज पीपल बाय वन वन थॉट प्रोसेस। यस, टिल द टाइम यू हैव नॉट मेट मी, आपकी एक इमेज थी दिमाग में, पता नहीं कैसा होगा। आज आप मुझसे मिल रहे हो, एक एक्स इमेज बनेगी, 7 दिन के बाद आपकी एक इमेज और बन जाएगी। मोर वी नो ईच अदर, देन यू कैन से कि हाँ मैंने 7 दिन इस व्यक्ति को देखा है और मैं महसूस कर सकता हूँ कि ये व्यक्ति ऐसा है। लेकिन पहले दिन मैं सोचूं जी भरत जी तो लेट आए हैं, बड़ा गंभीर होके बैठे हैं, स्माइल नहीं करते, तो ये तो ऐसे व्यक्ति होंगे, सीरियस टाइप के आदमी होंगे, जोक नहीं क्रैक करते, जबकि हो सकता है वो सबसे ज्यादा जोक क्रैक करने वाले इंसान। सही है। हम्म। राइट, सो आई कांट जज हिम दैट वे। हम्म, ही इज अ नॉलेज बैंक, उनके नाम में एक स्पेशलिटी है कि वो नॉलेज ड्रिवन आदमी है। जब तक कोई गहराई की बात नहीं होती वो नहीं बोलते, तथ्य के साथ बोलते हैं, राइट भरत जी? राइट, सही है। तो ये आपके नाम की एनर्जी है, न्यूमरोलॉजी यूज कर ली थोड़ी सी मैंने, ठीक है? हाँ, हाई नंबर। नहीं नहीं, इट्स नॉट 5 नंबर, इट हाई इज, इट इज नंबर है समथिंग। मेरा। एनीवे, हाई जब नंबर है। न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे तो बात करेंगे। मनी ब्लॉक, हाँ जी मैम। अच्छा। 8 है क्या? शनि इज मनी. हाँ जी। 8 number is also a money number ना. Yeah, it's not, eight number is also a money number. 8 number is a money number to accumulate and save the money. 8 number people are very, if excess of 8 is there, it is become, the person becomes miser. He started using the resources in a negative way, or he cries too much for the money, right? So money block क्यों होता है? कहाँ से मनी ब्लॉक होता है? पैसा आपकी तरफ से कहाँ बचता है? मेरे नोट्स को पढ़ के मत बोलना, अपने थॉट को बोलो। खर्चा नहीं करते हैं तो सब आता नहीं। मिस यूज ऑफ मनी, हाँ जी। मिस यूज ऑफ मनी, मनी की नहीं, ये कदर तो नहीं मिसयूज करते। तो बाद में होता है, पहले तो दिमाग में कुछ आता होगा ना। सीरीज ऑफ थॉट्स, आपने बचपन से आपके पेरेंट्स ने बोला पैसा बचाओगे नहीं तो चलेगा नहीं, पैसे से ही सब कुछ है, पैसा 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 पैसा। आपने हर चीज में पैसे को देखना शुरू कर दिया। आपको निकेश सर से बात करनी है, अच्छा मेरा फायदा हो रहा है, निकेश सर अच्छे हैं, फायदा नहीं हो रहा, किसी काम का नहीं, बेकार आदमी, भेज दो उसको कहीं, राइट? थॉट ऑफ माइंडसेट और फीलिंग्स दैट गेट्स वे योर अकम्प्लिशिंग फनी सक्सेस।
आपकी लाइफ में आप सबसे पहले क्या सोचते हो? अच्छा, मेरे पास, आप में से कितने लोग क्रेडिट कार्ड के ऊपर बिना सोचे बाय कर लेते हो? कभी ना कभी तो किया ही होगा लाइफ में कि हाँ यार, इम्पल्स में आके कर लिया। हाँ भरत? मैं बिना सोचे समझे स्वाइप कर देता हूँ बड़ी अमाउंट, फिर सोचता हूँ इसका क्या करूँ, मैं कैसे ईएमआई, पैसा फिर चुका। ईएमआई सोचते हो कि ईएमआई कैसे भरेगा? ईएमआई 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 कैसे बन भरेगा? फिर ऐसे वो वो सोचोगे सोच कि अच्छा, तो मेरे कौन कौन से दोस्त पैसे वाले हैं, मैं उनसे थोड़ा पैसा ले लेता हूँ, इंटरेस्ट बचा लूंगा। फिर सोचते आपने क्या किया? सबसे पहले नहीं। अपनी नीड को ग्रीड में बदला। मैं आपने नीड को ग्रीड में बदलते ही पहला ब्लॉक क्रिएट कर दिया। आप एक एक ना बर्तन में एक्सपेरिमेंट करिएगा। एक बर्तन में ना बहुत दिन तक पानी रख दीजिएगा छत के ऊपर। थोड़े दिनों में उसमें कीड़े आ जाएंगे। ऐसे ही आपके दिमाग में कीड़े आ जाते हैं। आज अच्छा। चावल रख दीजिएगा, उसके अंदर भी कीड़े आ जाएंगे। बहुत देर तक उसमें हम्म कीड़ा लग जाएगा, नेचुरली कीड़ा लग जाएगा। ये कीड़ा क्या है? ये कीड़ा आपके अंदर का अनटर्न अराउंड, चर्न अराउंड अराउंड चीज है जो वर्क नहीं कर रही। तो इट कुड बी गेटिंग आउट ऑफ डेट, सेविंग अ टन ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा आपने, पैसे को यूज आपने, मैं हमेशा कहता हूँ आप जिस चीज से कमा रहे हो ना उसको डोनेट करो। वैशाली नोज की बहुत बार ऐसा होता है कि वैशाली ने कभी मेरे को फोन करा होगा, तो मैंने कभी ये नहीं बोला होगा कि हाँ मेरे को पहले इतने पैसे ट्रांसफर कर फिर मैं बताऊँ। जी सर सर। मैं फंस गई हूँ, सर मेरे साथ ये हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, और ये घबरा के फोन करती है। इसका जब भी फोन आया बिल्कुल लास्ट ब्रिम के ऊपर, जब झटका लगा हुआ है पूरा, मतलब आप कहते हैं सर आप ही हो, तो मैं भाई मैं कहता हूँ मेरे पास जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता, यू आर द पर्सन के मुझे सारे सॉल्यूशन अब मिलने वो वाले क्या है हैं। कि उसका वो फेथ सेंटर मेरे को इतना बड़ा बना देता है कि मुझे लगता है कि यार अगर मैं, अब मैं किसके पास जाऊं? मतलब निकेत कपूर की भी तो कोई प्रॉब्लम होगी, वो किसको फोन करेगा? फिर उसको घर में पड़ती है डांट उसकी बीवी से, तुमने अगर ये किया तो तुम गए। फिर मेरे को मंत्र मिल जाता है, राइट? तो इसी तरीके से हम ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। नेवर ड्रीम ऑफ बैड थिंग्स, नेवर ड्रीम कि मैं फंस गई। नेवर से टू योर सेल्फ कि मैं कहीं नहीं पहुंची, मेरी लाइफ में स्ट्रगल है। डोंट से इट टू योर सेल्फ। पहला ब्लॉक क्रिएट कर रहे हो आप अपनी लाइफ के अंदर ये बोलकर। कुछ चीजें ना आपको जनरेशन से मिलती है, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आपके, आपकी पीछे लीनियज में आपके फादर ने, आपके दादा ने, आपके परदादा ने कुछ ना कुछ ऐसा किया जिसके कारण आपको कुछ स्ट्रगल मिली। तो आपको एंसेस्ट्रल कार्मिक क्लींजिंग भी करानी चाहिए अपनी, ही बाय वे ऑफ डूइंग हवनास इन होम, बाय वे ऑफ डूइंग डोनेशंस इन द नेम ऑफ देम, बाय वे ऑफ saying to Lord कि please forgive for something which we are not even aware of that we have done wrong. Please forgive us. मर्सी होना, सॉरी बोलना, गलती मान लेना, ये बोल देना मुझे नहीं पता। आज आप एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर क्या होगा, वो ये बोलेगा मुझे नहीं पता, मैं ढूंढ के स्टडी करके बताऊंगा। लेकिन लोग इसको ईगो मान लेते हैं, अरे वो क्या सोचेगा, मैं तो बोल रहा हूँ मैं एस्ट्रोलॉजर, मुझे तो पता होना चाहिए। अरे नहीं हो सकता पता बाबा, इतना बड़ा साइंस है। मैम ने टैरो पढ़ा, मैं आज टैरो के अंदर 10 और तरीके से पढ़ाता हूँ। इसका मतलब क्या मैम ने जो टैरो पढ़ा वो गलत है? नहीं, मैम ने जो पढ़ा वो उस गुरु की अपनी एक लिमिटेशन थी, लेकिन वो किसी और से पढ़ेंगी तो उनका दिमाग और खुल जाएगा। फिर एक किताब पढ़ेंगी फिर दिमाग और खुल जाएगा, फिर कोई वीडियो देखेंगी फिर दिमाग और खुल जाएगा। क्या हुआ? आपने चर्निंग करी, और जब आप चर्निंग करते हो दूध के अंदर तो क्या निकलता है? मक्खन, मलाई, दही और घी। तो आपके अंदर का पोटेंशियल क्या है? चर्निंग। चर्न योर सेल्फ, मूव योर सेल्फ, एंड यू विल फाइंड मनी विल फ्लो टू यू। बिलीव्स आर थॉट्स दैट होल्ड एनर्जी एंड इमोशंस। हम जैसा बिलीव करना शुरू कर देते हैं, आप रोज अपने को बोल दो मैं फेल हूं, मैं फेल हूं, मैं फेल हूं, और आप सबसे सक्सेसफुल हो। 45 डेज में आपका फेलियर आ जाएगा, 45 डेज के अंदर। और आप रोज बोलो आज का दिन कल से बहुत बढ़िया था, आई एम द रॉक स्टार। अमिताभ बच्चन मेरे आगे छोटा आदमी है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, आई एम द ग्रेट पर्सन, आई एम द अंबानी ऑफ माई लाइफ। जितने लोगों ने अंबानी की शादी देखी सबने कहा अरे यार इतनी 6 दिन तक शादी कर रहा है वो। सब उसके सिर्फ वीडियो को शादी को देख रहे हैं। और हर आदमी किस लिए बोल रहा है? यार शोबाजी कर रहा है। इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहा है अपने आप को? आई कांट अफोर्ड इट। मैं अफोर्ड नहीं, अगर आप अफोर्ड कर सकते तो क्या आप नहीं करते? क्या आप नहीं करते? मेरा सवाल ये है, करते? हम नेगेटिव चीज को बहुत जल्दी पकड़ते हैं।
अभी आपको बोलो ना, अच्छा चलो यार आओ मिलके ना बीजेपी की कमियां बताओ, मैं लिख के देता हूँ, 5 मिनट से कम समय में 20 चीजें लिख दोगे आप। और आप एक बार अपने बारे में बोलूं कि 5 अच्छी बातें लिखिए और अपने बारे में 20 बुरी बातें लिखिए, तो 20 बुरी बातें पहले लिखोगे, 5 अच्छी बातें बाद में लिखोगे। दिस इज द अप्रोच टू लाइफ, दिस इज द लिमिटिंग बिलीव्स। तो अपने लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़िए। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू ओपन द मनी ब्लॉकेज। ठीक है। बिलीव्स आर नॉट सॉलिड, दे आर फ्लूइड, ये आते जाते रहते हैं थॉट्स के साथ। जब हम इन थॉट्स को बार बार रिपीट करते हैं तो ये क्या बन जाती है, हैबिट। और जब ये हैबिट बार बार रिपीट होती है तो क्या बन जाती है, बिहेवियर। तो हमारे बिहेवियर में आ जाता है, एक बनिया कंजूस, कंजूस क्यों होता है, बनिया कहता है नहीं नहीं। आप कभी भी बनिया को देख लेना, वो अपने पर खर्चेगा, पैसा खर्चता है, अपने बेटे पे खर्चेगा। लेकिन अगर आपको देने की बात आएगी तो 1 रुपए तक के लिए आपसे लड़ेगा कि भैया वो 1 रुपया पेंडिंग था, 1 रुपया नहीं छोड़ूंगा, 1 रुपया तो चाहिए। हमारी प्रॉफिट ही यही है, 1 रुपया ही तो कमाना था भाई साहब, आप वो भी ले रहे हो मुझसे। उसका डायलॉग ये होता है। ऑब्जर्व द पीपल, हाउ डू दे बिहेव, यू विल अंडरस्टैंड देयर लिमिटिंग बिलीव्स, यू विल चेंज योर माइंडसेट। लेडीज की खास आदत, वेजिटेबल, अरे भैया धनिया तो दे दो, हरी मिर्च तो दे दो, 2 आलू फालतू डाल दो, ये छोटा क्यों डाल रहे हो, बड़ा वाला डाल दो। लिमिटिंग बिलीव्स, चेंज योर लिमिटिंग बिलीव्स, लर्न टू गिव टू हैव। मैं सबको ना एक बड़ी अच्छी, मैं एक बुक पढ़ रहा था तो उसके अंदर एक बड़ी अच्छी सूप थ्योरी है, हाउ डू यू यूटिलाइज योर रिसोर्सेस। सबको सूप बनाना, आई थिंक लेडीज को तो सूप बनाना आता होगा, भरत भाई का पता नहीं, क्योंकि मैं बहुत बेकार कुक हूँ। मैं अच्छा। सिवाय मैगी के कुछ नहीं बना सकता। हाँ। हम्म, तो भरत भाई आपको कुकिंग आती है कि नहीं आती मुझे पता नहीं। तो सूप सूप बनाने के लिए क्या करते हो आप लोग, इंग्रेडिएंट्स को लाते हो, राइट, पानी डालते हो, पानी बर्न करते हो, पानी बर्न करके स्टीम में कन्वर्ट होता है, उसका मिक्स करके खानेबल सोलेबल बन जाता है, राइट। तो आपने अपने रिसोर्सेज को बर्न किया, बर्न करके उसे वैल्यू एडिशन की, वैल्यू एडिशन करके आपने उसको यूजेबल बनाया, हाँ ईटेबल बनाया, और उसने आपको क्या किया, नरिश किया। सिमिलरली इन आवर लाइफ वी हैव टू बर्न आवर सेल्फ टू improve आवर रिसोर्सेस। घर में बैठे बैठे पैसा नहीं आएगा। अगर आपको 1 लाख रुपए चाहिए ना, 5 लाख रुपए चाहिए, रोड मैप लिखो उसका, कैसे कैसे आएगा। आपने किसी ने कभी इंश्योरेंस एजेंट बनाया, कोई इंश्योरेंस एजेंट, एनीबडी हैज वन, कभी इंश्योरेंस के लिए देखा इंश्योरेंस एजेंट कैसे काम करते हैं। जब आप इंश्योरेंस ज्वाइन करने की बात करते हो ना किसी से, वो कहते हैं अच्छा आपके, आपको कितने लोग जानते हैं, वो बोलेगा नहीं मेरी फैमिली में 100 लोग हैं, अच्छा 100 लोगों का नाम लिखो। तो आपको वो क्या दिखाते हैं कि ये 100 लोग आपके रिसोर्सेज हैं, तो इनसे तो जाके आप इमीडिएटली बात कर सकते हो। तो इंश्योरेंस एजेंट सबसे पहले उससे बात करता है, ही यूजेस रिसोर्सेज। जब वो सारे मना कर देते हैं फिर वो रेफरेंस लेता है, फ्रेंड्स लेता है। दिस इज हाउ यू इंप्रूव योर रिसोर्सेज। ठीक है। तो बिलीव्स को अपने रिलीज करना है। इफ इट इज अ बिलीफ दैट यू वांट एंड यू आर नॉट विलिंग टू रिलीज इट, तो अगर आप किसी एक बिलीफ पे स्टक हो गए हो, जब तक आप उसे रिलीज नहीं करोगे आपकी मनी ब्लॉकेजेस नहीं हटेंगे। मनी ब्लॉकेजेस आपकी इल विल से भी शुरू होते हैं, जब आप अपने किसी भी नीडी बंदे को या अपने से कमजोर बंदे की हेल्प करने से मना कर देते हो। आपके पास आपकी मेड आती है, जब तक वो काम कर रही है अच्छा, जिस दिन वो आपसे 100 रुपए का इंक्रीमेंट मांग लेगी, लेडी कहेगी अरे अभी तो लास्ट ईयर किया था इंक्रीमेंट, फिर से इंक्रीमेंट मांग रहे हो आप। कितने लोग ऐसा होता है जो कहते हैं कि मेड के लिए ½ किलो का डब्बा फलानी दुकान से ले लेते हैं, लेकिन अपने लिए तो देसी घी का डब्बा यहाँ से लेंगे। वी डू नॉट फेयर विद आवर लोअर लेवल एम्प्लॉयज, गिव देम मोर देन व्हाट यू कैन गिव, व्हाट यू थिंक। आपको स्लीपर देनी है, नई स्लीपर लेके दो, नहीं। उनको खाना अच्छा दो, एंड यू विल सी, आप थैंक यू बोलो उन्हें जब वो खाना बना के जाते हैं। अगले दिन उनके खाने की तारीफ, मेरी मेड आती है ना, मेरा खाना नेक्स्ट डे आएगी तो मैं उसे बोलता हूँ आपका खाना बहुत अच्छा था, सबने बहुत तारीफ करी आपकी, सबने थैंक यू बोलने को कहा आपको। शी हैज अ स्माइल, नाउ व्हाट शी इज कुकिंग, स्माइल इज कुकिंग अ गुड फूड। सो एनर्जी कैसी जा रही है आपके पास, स्माइलिंग एनर्जी। आप उसे आते ही डांट दो, लेट आई हो तुम, ऑफिस कब जाएंगे हम, कैसे होगा, तुम्हें मैंने दूसरों के लिए रखा है कि अपने लिए रखा है। बस एनर्जी में क्या गई अंदर, गुस्सा गया, तो आपके अंदर क्या आया, एंगर आया।
दिस इज हाउ यू क्रिएट ब्लॉकेज इन योर लाइफ. ठीक है. नेक्स्ट, सबकॉन्शियस मनी ब्लॉक्स कैसे क्रिएट होते हैं. बिलीव यू डोंट डिजर्व मनी. आप में से कितने लोगों को, अच्छा मैं आपके घर के बाहर गेट के ऊपर 1 करोड़ रुपया रख दूं तीनों के, आप उठाओगे? कौन ये कहेगा अरे यार 1 करोड़ रुपया मेरे पास, कौन छोड़ गया, कहीं ब्लैक का ना हो, पुलिस वाले ना आ जाए, इनकम टैक्स ना आ जाए. वैशाली कहेगी सर मैं संभाल लूंगी पुलिस वालों को, मेरे को तो मैं 1 तो ले लूंगी सर सबसे पहले। आती हुई लक्ष्मी को कौन मना करता है सर? गुड. दिस इज हाउ यू शुड बी. आपको भगवान ने गेट के बाहर पैसा, एक ना बंदे से, एक बंदा ना भगवान शिव जी की पूजा करता था. तो उसको बोला गया कि पार्वती माँ ने बोला कि भगवान ये आपकी रोज पूजा करता है, आप इसके लिए रास्ता क्यों नहीं खोलते. कहते उसकी किस्मत में नहीं होगा. कहते ऐसा कैसे, आप चाहो और उसको ना मिले. कहते अच्छा चलो वो भी करके देख लेते हैं. तो वो एक कलश हीरे जवाहरात से भरा हुआ उसके घर के रास्ते में रख देते हैं. तो उस बंदे की बुद्धि में उस दिन आता है कि यार लोग कहते हैं अंधे होके चलो लक्ष्मी मिलती है. तो अपने आंखों पे ना पट्टी बांध देता है कि आज मैं अंधा होके चलूंगा. तो जब वो घर से निकलता है अंधा होके तो उसकी टक्कर लग जाती है कलश के साथ. हाँ, और वो गिर जाता है. कहते हैं, देखो कितने बेवकूफ लोग हैं, रास्ते में कलश रख दिया. और वो उसको बिना अपनी पट्टी उतारे देख के कि क्या है उस कलश में, आगे चले जाता है. दिस इज कॉल्ड द मनी दैट यू डोंट डिजर्व. वो खुद को ये यकीन दिला के बैठा हुआ है कि मुझे तो इतना पैसा मिल ही नहीं सकता. डोंट इंप्रूव योर बिलीफ सिस्टम, इंप्रूव योर पैराफ्रीज. आप अपने आप को एक डेली एफर्मेशन दो. आई डिजर्व वेल्थ, आई एम मूविंग टूवर्ड्स अ लाइफ ऑफ अबंडेंस. प्लीज डू राइट दिस एफर्मेशन मेनी टाइम्स इन योर डे. I deserve wealth and I am moving towards a life of abundance. This is a very, very positive affirmation that you should write every day many times. जब भी खाली बैठे हुए लिखो. और किससे लिखो? ग्रीन पेन से लिखो. ग्रीन पेन से लिखो. ग्रीन इज द कलर ऑफ अबंडेंस. ठीक है. यूज deserve दिस. wealth and I deserve wealth and I am moving towards a life of abundance. ठीक है. आपको कई बार एनवायरनमेंट क्यूज देता है. डज योर होम और वर्क एनवायरनमेंट सबकॉन्शियसली ट्यून करता है आपके. कभी कभी आप किसी के घर जाते हो, आप उसके घर में कहते हो अरे मैं वैशाली के घर गया, वैशाली का घर इतना अच्छा हो, मैं कहूँ अरे नहीं यार यहाँ तो 2 कप चाय फालतू पी, मजा आ रहा है वैशाली के साथ बैठ के. लेकिन मैं भरत जी के घर पे जाऊँ या किसी के घर पे जाऊँ और वहां पे कहूँ यार यहाँ चाय खत्म कर और भाग, यहाँ मजा नहीं आ रहा, ऑरा नहीं मिल रहा, वो एनर्जी. आप कहते हैं यार यहाँ का ना पता नहीं कुछ, बंदा बुरा नहीं था, पता नहीं कैसा था, लेकिन वहाँ का ऑरा समझ में नहीं आया. तो वहाँ की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो आपके साथ कनेक्ट नहीं करती. तो आप अपने घर की एनर्जी को कैसे अच्छा कर सकते हो. मैंने बोला सारे ब्लॉकेजेस. दिवाली आ रही है, जो कपड़े पिछले 5 साल में यूज नहीं करे ना, कृपया करके उसको डोनेट कर दीजिए. जो जूते 5 साल में नहीं पहने फेंक दीजिए. जो डिजिटल चीजें आपके पास खराब पड़ी हैं या यूज नहीं करी हटा दीजिए. जो आपके घर में कैश, अपने पर्स को क्लीन करिए. कितने लोग पर्स में पैसे से ज्यादा विजिटिंग कार्ड्स रखते हैं. प्लीज रिमूव विजिटिंग कार्ड्स. कितने लोग क्रेडिट कार्ड के साथ डेबिट कार्ड रखते हैं. प्लीज रिमूव द डेबिट क्रेडिट कार्ड्स फ्रॉम द डेबिट कार्ड्स. आपने अपने डेबिट कार्ड को क्रेडिट कार्ड से मिला दिया, यानी कि मेरे बैंक में जो आएगा कहाँ जाएगा, क्रेडिट में. फिर भरत जी कहेंगे अरे सर मैं तो बाइंग कर लेता हूँ फिर सोचता हूँ. तो दोनों क्रेडिट कार्ड हटा दो, क्रेडिट कार्ड तो हटाना है। गांठ मार के रख दो. उसको बोलो मेरे पास है ही नहीं है, मैं तो इमरजेंसी में, जब मैं मर रहा हूँ ना तब मैं यूज करूंगा इसको. मरने जीने की बात आ जाएगी, हॉस्पिटल के बिल के लिए यूज करूंगा इसको. अच्छा, हॉस्पिटल वाले तो केस मांगते हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं जरूरत केस मांगते हैं, देते ले लेते हैं क्रेडिट कार्ड. आज जमाना बदल गया है. देते हैं जी। लेते हैं, सब लेते हैं. कॉमन ब्लॉक्स ऑफ दिस टाइप इंक्लूड स्मॉल चेंजेस, केयरलेसली लाइंग अराउंड, पुअरली ऑर्गेनाइज रिसीप्ट्स. आपने अपनी रिसीट्स को ठीक से नहीं रखा. अच्छा, बाइंग कर ली, वारंटी खत्म होगी लेकिन आपने रिसिप्ट संभाल के रखी हुई है. जिस बिल, जो 10 साल पुराने बिल्स हैं आपके जिनकी कोई आज जरूरत नहीं है, उन पेंडिंग बिल्स को हटाइए अपने घर से. रिमूव द एनर्जीज. मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपका आधा घर खाली कर दूंगा. जो दाल के डब्बे खराब हो रखे हैं, जो 5 साल से आपने बदले नहीं, बदल दीजिए. गमले पुराने हो रहे हैं, बदल दीजिए. आपका घर में बिना कुछ करे रेमेडीज हो रही हैं. अपने घर में मंदिर को हर फ्राइडे साफ करिए. अपने घर में फ्राइडे के दिन नया ब्रूम लेकर आइए, न्यू ब्रूम.
फ्राइडे के दिन अपने घर में खुद अपने हाथ से एक बार जरूर सोफा या सफाई या पोछा जरूर करिए. When you do that, you do a karma for your home. Your karma improves. You touch each corner of your home. वो कहते हैं ना, मेड की ऐड आती है, सर कोने कोने का 5 लाख लेगी. कोने में ऐसा क्या है? कोने में डेंगू है, मलेरिया है, तो आपके घर का मलेरिया और डेंगू हटाइए. अपने घर की टैंकी साफ करिए हर 6 महीने में. अपने घर के ऊपर जो पीपल का पेड़ उग गया उसको हटाइए. अपने घर में कोई सीपेज आ रखी है तो उसको ठीक करिए. अपने घर के ड्रिपिंग नेल्स को ठीक करिए, नलकों को ठीक करिए. आपके घर में ब्लॉकेजेस ठीक होना शुरू हो जाएंगे. 80% जगह पे जब भी लीकेज होती है, सिम्टम्स मिलते हैं आपके घर में, अननेसेसरली दूध फैलने लग जाए या दूध उबल के गिरने लग जाए, इट इज फर्स्ट सिम्टम टू यू कि मनी ब्लॉकेजेस तैयार हो रही है. टेक केयर ऑफ इट. बी वेरी कॉशियस कि आपका दूध ना फैले. टॉयलेट खुद साफ करना चाहिए. टॉयलेट करना चाहिए साफ, एक बार तो जरूर करना चाहिए. राहु की कनेक्टेड, राहु की इट्स नॉट अबाउट राहु, इट इज अबाउट आपने उस स्टेगनेट, एक फाउल स्मेल की जगह पे जब आप अरोमा क्रिएट करोगे तो वो फाउल स्मेल आपके घर में नहीं जा रही. आप क्या कर, आप एग्जॉस्ट क्यों जलाते हो टॉयलेट जाकर? ताकि वो फाउल स्मेल बाहर निकल जाए, फ्रेश एयर अंदर आ जाए. व्हाट डज इट गिव यू? इट गिव्स यू अ सब्सटेंस. आप अपने बाथरूम को सुंदर क्यों बनाते हो? क्यों सुंदर एक पौधा रखते हैं, क्यों म्यूरल्स रखते हैं, क्यों एक पेंटिंग लगा देते हैं? ऐसा क्या है बाथरूम के अंदर? दैट इज योर पर्सनल स्पेस. सर इवन वॉशरूम को वेट नहीं रखना चाहिए ना ज्यादा, करेक्ट. मतलब. इट शुड बी मोस्ट ड्राई. उसके लिड्स बंद होने चाहिए टॉयलेट के. यस. आपने फ्लश किया, लिड बंद कर अनिल दिया. भाई आप बोरवेल बोरवेल हटा लो नहीं यार, क्या तुमको कंकोत्री लिखूं क्या मैं यार? जिसके भी पीछे से साउंड आ रहा है वो प्लीज बंद कर दें, बिकॉज अगर दैट इज ठीक है. तो रीफ्रेम योर एनवायरनमेंट टू रीफ्रेम योर थॉट्स. आप अपने एनवायरनमेंट को रीफ्रेम करिए, आपकी थॉट्स में चेंज आ जाएगा. आप करके देखिए. एक दिन आप सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के देखिए, सही टाइम पे नहाइए, सही टाइम पे पूजा पाठ करिए. 11 दिन आप ये लगातार करिए, आपकी एनर्जीज बदल जाएंगी, आपका थॉट बदल जाएगा, आपके अंदर कामनेस आ जाएगी, आपको चीजें परेशान नहीं करेंगी. ठीक है. एक्चुअली सर मैं लास्ट 15 डेज से मैं वही कर रही हूँ. चेंजेस है. मॉर्निंग 4:34 उस टाइम पे उठने लगी. चेंज तो दिख रहा है. हाँ. अब नेगेटिव एजम्पशंस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं अबाउट मनी. While abundance is goal for many people, well, lack of wealth can lead to negative thoughts about money. जब आपके पास पैसा नहीं होता तो आप कहते हो अरे यार मेरी तो किस्मत खराब है, मैं तो पिछले जन्म में पता नहीं किसी की बददुआ लगी हुई है, इस घर में ही कोई प्रॉब्लम है, किस घड़ी में मैंने इस व्यक्ति से शादी कर ली. हम कर्स करना शुरू कर देते हैं. एंड इट क्रिएट्स ऑल्सो, वी एज्यूम कि हाँ, however dwelling of these negatives can block success. Write down every negative message you ever heard about money, whether it is from family, society, religion. Next to reach each belief, write down a positive message. आप कहते हो मेरी किस्मत खराब है, उसे बोलो मैं अपनी किस्मत अपनी मेहनत से अच्छी कर रही हूँ. आप बोल रहे हो ये व्यक्ति मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मैं हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ. आप कहते हो मेरे पास ये पैसा नहीं है, आप बोलो मैं पैसे के लिए ऑल्टरनेटिव्स निकाल पाऊंगी. चेंज एवरीथिंग टू पॉजिटिव. जो नेगेटिव थॉट्स आपको आते हैं उसके जस्ट ऑपोजिट वो पॉजिटिव थॉट्स लिखिए और नेगेटिव थॉट वाले पेपर को बर्न कर दीजिए, बर्न कर दीजिए. एंड यू विल सी. और आप ये एक्टिविटी साइकोलॉजिकली करके देखिए तो आप देखेंगे कि आपके अंदर की जो एनर्जी सिस्टम है वो ठीक हो जाएगा. जैसे मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल्स. सब लोग कहते हैं ना अरे सर मनी जो है ना आदमी को शैतान बना देता है. मनी से ही सारे झगड़े होते हैं. मनी से झगड़े नहीं होते, अनक्लैरिटी से झगड़े होते हैं. अगर मैंने आपको मैम को, किरण मैम को बोला होता कि मैम आप ज्वाइन करो मजा आ जाएगा, आप चिंता मत करो, सर कोर्स का कंटेंट, अरे मैम बता देंगे चिंता मत करिए, मैं बैठा हूं ना. और मैम को ज्वाइन करने के बाद मैं कुछ भी ट्रीट नहीं करता ठीक से या हेल्प नहीं करता, तो मैम को क्या लगता आज की डेट में पैसे को लेके हर आदमी कोई भी बुरा काम कर सकता है. वाई शी हैविंग अ बिलीफ. उनको क्यों लग रहा है कि हाँ आज जो मैंने पैसे खर्चे वो वर्थ इट थे. फर्स्ट एक्सपीरियंस इज द लास्ट एक्सपीरियंस, राइट? सो आवर रेप हैपेंस इन द माइंड.
So when you won't have a thought of a rape in your mind, you will not do a rape. So don't rape your resources. Don't rape your thoughts. Don't rape the environment around you. Right? So money, fear of success. कभी कभी ना हम सबकॉन्शियसली डरते हैं, अरे अगर इतना मैं किसी को बोलूँ, मैं जैसे मैंने विशाली को भी बोला तो विशाली ने बोला कहाँ सर मैं तो 1 करोड़ रुपया ले लूंगी, लेकिन मैं बोलूँ कि विशाली 1 करोड़ रुपए का प्लान क्या है यूज का। सब कहते हैं सर मुझे करोड़ों मिल जाए, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मुझे करोड़ों मिलेंगे तो मेरा ये प्लान है। इसीलिए 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 वो 1 करोड़ को यूटिलाइज नहीं कर पाते। इसीलिए वो 1 करोड़ उनके पास आता नहीं है, बिकॉज वेन यू डोंट हैव अ थॉटफुल प्लान विच कैन कन्वर्ट थिंग्स इनटू अ पॉजिटिव वे। मैं ये नहीं कह रहा 1 करोड़ रुपया होना बहुत जरूरी है, नहीं जरूरी है, वो मिले या ना मिले, लेकिन इफ यू वांट मनी विदाउट अ प्लान, मनी विल नॉट कम टू यू। मनी कम्स टू द पर्सन हु हैज अ प्लान। मेरा है तो सर आपके पास आएगा। मेरे पास एकदम क्लियर है सर, मेरे मुझे क्या करना है 1 करोड़ का। ठीक, यहाँ से शिफ्ट करो वहाँ। चलो तो किरण मैम और मैं पार्टनर बन जाते हैं आप दोनों के, हम दोनों भी कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबकॉन्शियसली आपको टेरिफाई नहीं होना। वाइल बीइंग कॉन्शियस बी बेनिफिशियली टैक्टिक। आप कॉन्शियस रहो बट नेगेटिव बात मत करो, डरो मत, फियर मत रखो, और आउट ऑफ फियर कभी भी इम्पल्सिव होकर कोई काम मत करो। कभी कभी हम कहते हैं अरे यार नौकरी जाने वाली है, चली गई कोई बात नहीं, नहीं आ जाएगी, उस चक्कर में आप आगे से आगे किसी और बर्डन को अपने ऊपर ऐड मत करो। आप एक उधार उतारने के लिए दूसरा उधार उठाते हो, दूसरा उतारने के लिए तीसरा उठाते हो, फिर आपके लिए वो एक विशियस साइकिल बन जाता है जहां आप ईएमआई के चक्कर में फंस जाते हो। ब्रेक दैट साइकिल। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर अभी वो संयम नहीं आया कि मैं क्रेडिट कार्ड को कंट्रोली यूज कर सकता हूं, तो कैंसिल द क्रेडिट कार्ड, वर्क ओनली ऑन डेबिट एंड योर लिक्विड कैश। आप देखेंगे लाइफ इजी हो जाएगी। उतना ही खर्चा करो जो मैनेज कर सकते हो, और धीरे धीरे उसको स्किलफुली बढ़ाओ, अपनी लेवल को बढ़ाओ ताकि खर्चा बढ़ा सको। मुस्लिम्स एक लाइन बोलते हैं बहुत अच्छी, जो मुझे अच्छी लगती है, आप चादर बड़ी कर लो, पाँव अपने आप बड़े हो जाएंगे। तो चादर बड़ी करिए। चादर का मतलब क्या है? रिसोर्सेज बड़े करिए। अरेंज द रिसोर्सेज सो दैट यू कैन हैव मोर मनी पावर टू स्पेंड। ठीक है। सबकॉन्शियस मनी ब्लॉक्स में राइट डाउन द एंजाइटीज यू हैव अबाउट सक्सेस। आप सबको जो जो एंजाइटीज होती हैं उनको एक पेपर पे लिख लीजिए। Perhaps, example, perhaps you worry you still won't be happy or aren't responsible enough to have huge amount of। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं खुश होता। अगर आपको ये ऐसा बिलीफ सिस्टम लगता है तो लिखिए इसको, ये रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है। आपके पास पैसा होता तो आप खुश होते। पैसा होता तो आप मैनेज कर सकते थे, क्योंकि आप मैनेज कर सकते थे इसलिए आप खुश होते। पैसा होता तो आप खुश नहीं होते, लेकिन पैसे को मैनेज करना पड़ेगा। पैसे को मैनेज करने से आप खुश होते, रिसोर्सेज को मैनेज करने से आप खुश होते। Write down reason to contradict each of these anxieties. Repeat those positive statements every day. वो अपने लिए एक मंत्र बुक बना लीजिए, मेरी पॉजिटिव मंत्र बुक। ब्लाइंडनेस टू साइंस दिस यू माइट बी यूज्ड टू ट्यूनिंग इट। आपके पास आपके एनवायरनमेंट में ही लोग आपको बोल देते हैं अरे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अब इस उम्र में तुम क्या कर लोगे, इस उम्र में क्या कमा लोगे, इस उम्र में कहाँ पहुंचोगे। लेट मी टेल यू, there are celebrities like that Three Idiot principal, well, whose name is क्या नाम है, थ्री इडियट में जो प्रिंसिपल बनते हैं, भूमन ईरानी। हाँ, भूमन ईरानी। he started his career at age of 40। उससे पहले वो बेकरी में काम करते थे कुछ, राइट। So there are people who can make success stories at any age. A guy called Ranveer Alavadi, who is the biggest podcaster today, charges 1.2 crores for a podcast. So he must have got an idea. He must have having a very positive belief. उस समय जब किसी का दिमाग नहीं चल रहा था, he had a Blinkit, and एक आइडिया ही था ना। So there is no idea which is small or big, but you should have a positive idea. Work towards it. If you will work towards it, universe will support you. You will miss the signs from universe that are trying to point out towards wealth. 10 मिनट डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए, आपका इंट्यूशन इंप्रूव होगा। मैम ने कहा मेरी इंट्यूशन इंप्रूव नहीं होती। मैम त्राटक करिए, टेक अ पेन, look, start looking at the tip of it.
कंटिन्यूसली, जब तक आपकी आंखें ब्लिंक ना करें। नहीं, और धीरे धीरे उसका टाइमिंग बढ़ाइए, त्राटक करिए, या मोमबत्ती की फ्लेम के टिप को लगातार देखिए, आपका ये एरिया एक्टिवेट होगा। एंड आई गिव यू अ वेरी गुड एक्सरसाइज ऑन दिस पॉइंट। मूव योर फिंगर कंटिन्यूसली clockwise. Nice. On your wrist, use your these three fingers and press it daily. Press it daily. All the three nerves, the kapha, vata, and pitta, are going through here. It activates your trigunas. You will improve it. Press your hand towards each other like this and create a pressure. This will improve your blood circulation. Once your blood circulation is good, you are able to connect. Think of Ma Saraswati. That will help you to get that knowledge drain into your brain. कभी कभी मैं किसी का चार्ट नहीं देखता और मैं जाते जाते भी उसको बोल देता हूँ कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर ले, तो वो काम कर जाता है। वैशाली के साथ ही हुआ है, मैंने चार्ट नहीं खोला और मैंने वैसे ही बोल दिया कि ये कर ले, तेरा काम बन जाएगा, तेरी चीज ठीक हो जाएगी। इंट्यूशन। ठीक है, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ नंबर 8। 8 इज ए लकी साइन। अब 8 को लोग अनलकी क्यों बोलते हैं? 8 इज ए वेरी, व्हाट डज 8 शो? 8 आपको क्या बोल रहा है? Infinities, 6 sign. लेकिन नहीं, 8 की ज्योमेट्री को समझो। ये क्या है? ये नोट है। दैट मीन्स it is a point where you have to put an extra threshold from going this world to this world, from your spiritual world to the material world, and from material world to the spiritual world. What goes around comes around. It is a balance between, it is like two eggs over one another, creating a balance. So you have to create a balance of life. आपका टिल्ट जहां भी ज्यादा होगा वहां से वो एग गिर जाएगा, राइट? सो लैक ऑफ स्पेसिफिक, जब आप स्पेसिफिक नहीं होते, इफ यू थिंक यू आर सेट, you have set a clear intention in your law of attraction work. Many people does not realize that their subconscious has pushed them to set a very vague goals. अब अपने गोल्स को बहुत सेट स्पेसिफिक गोल्स डालिए। बी वेरी स्पेसिफिक। सर पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए? लिखो यहाँ पे 5 लाख रुपए चाहिए। कितने टाइम में चाहिए? 3 लाख रुपए में, 3 महीने में चाहिए। कैसे करूंगा? मेरे पास ये है, ये है, ये है, मुझे इतने लोग चाहिए। मैं जब वैशाली के साथ बात करता हूँ, बिकॉज शी इज ऑल्सो वर्किंग विद मी, सो आई ऑलवेज टेल हर कि अगर हमारे पास वेबिनार में इतने लोग आएंगे तो इतने लोग अटेंड करेंगे, तो इतने लोग कन्वर्ट होंगे, इतने लोग कन्वर्ट होंगे तो इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा तो ये मिलेगा, इसको हम डेवलपमेंट में यूज करेंगे। दिस इज हाउ वी प्लान इट, राइट? We did this workshop for everybody, but there are few who joined. There are few could not join, but wanting to join. Fine, they missed the train. Pain, loss is not mine, loss is theirs. Yes. Because आप लोग अब क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपको फर्क पता चल रहा है कि क्या मिल रहा है मुझे, राइट? तो बी स्पेसिफिक इन योर थॉट प्रोसेस। वी गिव देम ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी, गिव ए स्पेसिफिक टाइम स्पेंड। कितने टाइम में कितना अमाउंट? मान लो भारत जी कहते हैं मेरे पास 10 लाख रुपए का लोन है, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस लोन। सो राइट, कि मैं 10 लाख रुपया 5 साल के अंदर उतारूंगा, 5 years. Divide that 5 years into number of months. Divide those months into number of days. Divide those days into number of hours. You should know कि मेरे को पर आवर इतना कमाना है ताकि मैं वो 5 लाख रुपया उतार सकूं। जब आप इतने स्पेसिफिक टारगेट्स रखोगे तो आपको क्लैरिटी होगी कि आपका वे फॉरवर्ड क्या है, आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ चूक रहे हो। तो करिए। ओके, ठीक है। तो लो एक्सपेक्टेशंस, वेदर इट इज, कभी कभी हमारे पास, हम अपने अपने अंदर ही खुद को कहते हैं कि नहीं, हम इतने डाउटफुल होते हैं कि नहीं नहीं, अरे मैं नहीं कर सकती। मैं अभी अगर वैशाली को या किसी को भी बोलूंगा कि यार ये 100 करोड़ की कंपनी है, तुम इसको ले लो और इसको चलाओ, मैं तुम्हें डायरेक्टर बना देता हूँ। एक लोएस्ट सेल्स पर्सन को बोला गया आज से तुम डिपार्टमेंट के हेड हो, तुम कंपनी चलाओगे। तो बहुत सारे सेल्स पर्सन डर गए,
अरे बॉस ना हमें निकालना चाहता है, इसलिए सबसे डिफिकल्ट काम हमें दे रहा है। लेकिन उनमें से एक जो था वो बहुत क्लियर था अपने हेड में, और उसने कहा हाँ सर मैं चलाऊंगा। He gave that attempt. He improved. He did his MBA to do add more skills to him. He went to his boss to take his advice and guidance, and he managed. And that's why he became the general manager or the vice president. इसीलिए मैनेजर एक ही होता है, एम्प्लॉय बड़े सारे होते हैं। तो आपको डिसाइड करना है, यू वांट टू बी इन द ब्रैकेट ऑफ दैट एम्प्लॉय वाला ब्रैकेट, और यू वांट टू बी इन द जीएम और वाइस प्रेसिडेंट ब्रैकेट। सेल्फ एम्प्लॉयड होना और बिजनेसमैन होना, ये दो अलग बातें हैं। अगर आप आर्ट ऑफ डेलीगेशन, आर्ट ऑफ बिलीफ, आर्ट ऑफ नोइंग एंड आर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देना नहीं जानते, तो आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते। एवरीथिंग निकेत कपूर कैन नॉट डू। निकेत कपूर हैज टू हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिज वर्क, एंड सो ऑल ऑफ यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट योर वर्क। एक्सेसिवली गिविंग, जब आप जरूरत से ज्यादा दे देते हो। कभी कभी हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, अरे आज मूड अच्छा है निकेश सर का, निकेश सर ने कहा, अरे आज के कोर्स में ना मैं तुम्हारे को 5,000 रुपए की चीज फ्री देता हूँ। अब 5,000 रुपए की चीज तो फ्री अनाउंस कर दी, लेकिन आगे की प्लानिंग, आगे का मैनेजमेंट, आगे का पैसा, वो कहाँ से आएगा? गॉन, फिनिश्ड। तो ये आपका एक्सेसिवली मीनिंग माइंडसेट होता है। ऑलवेज बी बैलेंस्ड। इफ यू वांट टू हैव अ बैलेंस, इफ यू विल क्रिएट अ बैलेंस, यू विल हैव मनी, यू विल हैव अबंडेंस। तो ये ब्लॉक्स आपके ऐसे हटेंगे। नाइनटी लो एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी, एक्सेसिव भी नहीं रखनी, ठीक है। इंडिकेटर्स ऑफ मनी प्रॉब्लम्स विच आर विजिबल, कट इन द साउथ ईस्ट, इन द होम और इन नॉर्थ। अगर आपका नॉर्थ घर का एफ्लिक्टेड है, एफ्लिक्टेड कैसे होगा? वहां टॉयलेट आ गया, वहां किचन आ गई, वहां स्टोर आ गया, वहां स्टेयर केस आ गए, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। साउथ ईस्ट के अंदर वाटर बॉडी आ गई, साउथ ईस्ट में स्टोर आ गया, साउथ ईस्ट में स्टेयर केस आ गया, साउथ ईस्ट में कोई बहुत बड़ी खिड़की आ गई, तो आपका साउथ ईस्ट खराब हो गया, ठीक है। एंट्रेंस इन साउथ ईस्ट, आपके घर की एंट्रेंस ही साउथ ईस्ट से हो, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वाटर बॉडी इन साउथ ईस्ट। नंबर 6 न्यूमरोलॉजी के अंदर मिसिंग है किसी का, तो मनी की प्रॉब्लम आएगी उसको। वीनस डेबिलेट हो जाए या एफ्लिक्ट हो जाए मैलेफिक्स के साथ आपके हॉरोस्कोपिकल चार्ट में या नवांशा में, तो भी प्रॉब्लम आ जाती है। क्लटर हो जाए, सीपेज आ जाए घर में, वेस्ट ऑफ फूड, बार बार खाना फेंकना पड़ रहा है, आप आधा खाना खाते हो आधा नहीं खाते हो, या रेस्टोरेंट में खाना जाने जा रहे हो, खाना जरूरत से ज्यादा ऑर्डर कर दिया और वो वेस्ट हो गया। मैं कभी भी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, खाना बचता है पैक कराता हूँ, उसे रास्ते में किसी को देता हूँ ताकि वो खा सके। आई नेवर वेस्ट द फूड, या मैं लेता ही उतना हूँ जितना मैं खा सकता हूँ। फाउल स्मेल आ रही है आपके घर में, आपके जूतों में से, आपके घर के अंदर से, आपके रूम में से, आपके किचन में से, तो ये इंडिकेटर है कि आपके घर में मनी प्रॉब्लम्स है। मून और जुपिटर अगर किसी के भी चार्ट में एफ्लिक्ट हो रखे हैं, खराब हो रखे हैं एस्ट्रोलॉजिकली, तो प्रॉब्लम है, मनी की प्रॉब्लम है। जुपिटर इज द कारका फॉर वेल्थ, मनी इज, मून इज द कारका फॉर लिक्विडिटी। जो आपका लिक्विड कैश है वो मून रूल करता है। तो अगर किसी के पास लिक्विड कैश नहीं है, यदि पैसे तो, वैसे तो मेरी नेटवर्थ जो है 50 करोड़ की है, लेकिन 2 लाख रुपए कैश नहीं पड़ा मेरे पास, तो आपके पास लिक्विड कैश अगर नहीं है तो ये भी प्रॉब्लम है, राइट। एस्ट्रोलॉजिकली सेकेंड हाउस, 11th हाउस या उसके लॉर्ड्स इफेक्ट हो जाए, है, तो सेकेंड हाउस इज योर एक्यूमुलेशन मनी, जो आप अपनी मेहनत से कमाते हो। 11th हाउस इज द प्रॉफिट एंड द गेन्स दैट यू गेट फ्रॉम एनी बिजनेस। सो अगर यहाँ इसके लॉर्ड खराब हो जाए, अगर आपका चक्रा लेवल पे सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सिस चक्रा एफ्लिक्टेड हो रखा है, आप में से किसी को डाउजिंग आती है? डाउजिंग, एनीबडी नोज डाउजिंग? डाउजिंग पता है किसी को? ओके, वैशाली को पता। भंवर जी आपको पता है डाउजिंग? भरत जी आपको डाउजिंग पता है? नो। तो डाउजिंग इज एन वे टू चेक द एनर्जीज। तो आप बहुत इजीली डाउजिंग से चेक कर सकते हो कि किसी का कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है, कौन सा चक्रा खुला हुआ है, राइट। अगर आप उसको सीखना चाहते हो तो हमारा अलग से क्रिस्टल का डिटेल कोर्स है, आप कर सकते हो, लेवल 1 to 3। उसमें हम बहुत इलाबोरेटिव वे के अंदर क्रिस्टल की रेमेडीज को सिखाते हैं। सर
ये जो आपने बताया था बाथरूम, इवन आई नो कि नॉर्थ में बाथरूम नहीं होना चाहिए, राइट? बट इफ देर इज ए बाथरूम इन नॉर्थ, एंड इफ इट इज, मेरा तो ये है ना रेंटल हाउस, तो क्या हो गया, आप तो तब भी ट्रीट कर सकते हो उसको। हाँ वही मैं उसका आपको करने की मैं अच्छा आपको लगा। बाथरूम का एक ऑयल दूंगा और डायरेक्शन का एक ऑयल दूंगा, आप वो रखिए अपने पास वहां पर, एंड इट विल इम्प्रूव द एनर्जीज देयर। ओके। सब कुछ हमारे पास रेंट वाले बंदों के लिए भी, क्योंकि 80% बॉम्बे ये रेंट पे वही रहता तो एक्चुअली अभी तो मैंने शिफ्ट किया है हैदराबाद। घर तो पूरा सही है, साउथ ईस्ट में किचन है, सब कुछ सही है, नॉर्थ में एक बाथरूम आ गया। है। नॉर्थ ईस्ट में किचन है, नहीं, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में किचन है, साउथ हाँ। ईस्ट में किचन है, बाकी सब अच्छा है। द ओनली थिंग इज नॉर्थ में बाथरूम देखो की। जब आपका नॉर्थ में बाथरूम आ जाता है ना, तो आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते। वही तो मुझे पता था। तो अभी इसके लिए कुछ रेमेडी क्या कर सकते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, आप दो चीज करिएगा। एक तो सबसे पहले तो आप वहाँ पे उस बाथरूम को सबसे कम यूज करिए, उसका हम्म। लिड कवर करके रखिए, और उसके अंदर रेगुलरली जो है सॉल्ट की फ्लशिंग करिए। ये वो आपके लिए अच्छा है सेरेमिक बाउल पे भी। और आपको जो मैं ऑयल बोल रहा हूँ आप वो रखिए मेरे कहने पे, आपको एनर्जीज बहुत अच्छे मिलेंगे, आपकी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। ठीक है। कॉमन बिलीफ और ट्रुथ क्या है? आई डोंट ट्रस्ट द यूनिवर्स टू प्रोवाइड मी विद फाइनेंशियल। आपको बहुत से, और ट्रुथ स्टेटमेंट क्या होगी? आई ट्रस्ट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ अबंडेंस प्रोवाइड मी विद द फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है। तो नॉर्मली ये कहते हैं इट इजंट स्पिरिचुअल टू हैव मनी। अगर आपका पैसा होगा तो आप स्पिरिचुअल नहीं हो रहोगे, ये भी एक बहुत बड़ा रॉन्ग बिलीफ है। इट इज डीपली स्पिरिचुअल, बिकॉज आप सोचो, वीनस जो है वीनस जो है वो राइज ही करता है सबसे स्पिरिचुअल हाउस के अंदर, दैट इज द 12th हाउस। सो हाईएस्ट रिसोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या है? आनंद, व्हेन यू आर एबल टू कनेक्ट टू द डिवाइन माइंड, दैट इज योर हाईएस्ट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, राइट? जब आपको किसी आत्मा को परमात्मा मिल जाए, उसको और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए ना। करेक्ट। सो दैट इज देयर। आई एम विक्टिम ऑफ डिवोर्स, डेथ, इलनेस कॉज बाय थिंग। तो ये आपका ट्रूथ स्टेटमेंट होगी, आई एम परफेक्टली कैपेबल ऑफ हैंडलिंग फाइनेंशियल अफेयर्स इन स्पाइट ऑफ अपार्टमेंट एंड सेटबैक्स। आई एम नॉट गुड विद मनी। ट्रूथ स्टेटमेंट, आई एम लर्निंग टू बी वेरी गुड विद मैनेजिंग मनी। तो आपके हर नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कन्वर्ट दोज नेगेटिव स्टेटमेंट्स इनटू योर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। ये आपको पीडीएफ में आएगा, आप इसको पढ़ सकते हो इस स्लाइड को। सो आई एम नॉट रीडिंग एवरीथिंग बट आई एम टेलिंग यू हु दैट इज देयर। ठीक है। वेज टू क्लियर नेगेटिव एनर्जी, वेरी वेरी। आई एम अशेम्ड ऑफ माई फाइनेंशियल सिचुएशन। कभी कभी हमारे को पैसे की इतनी कमी होती है कि आपको लगता है, मान लो मैं आपके पास मैं आपका टीचर हूँ और मैं आपके पास आऊँ, अरे आई एम गोइंग थ्रू अ बैड पीरियड, गिव मी 5,000 रुपीज, आई रिटर्न यू बैक इन 10 days। तो अगर मैं गिल्ट के अंदर आ जाऊं कि अरे यार, लोग मेरे स्टूडेंट क्या सोचेंगे, मैं उनसे 5,000 रुपये मांग रहा हूँ। सिचुएशन कैन कम टू बैड टू अ गुरु ऑल्सो और अ स्टूडेंट ऑल्सो, बट नेवर फील ashamed about it. Shame is a very deep experience for most everyone. It can be masked by fear और guilt। या तो हमें फियर आ जाता है, हमें गिल्ट आ जाता है, या हम डर जाते हैं। दोनों ही केस के अंदर या तो हमें एंग्जाइटी अटैक आता है, या सुसाइडल टेंडेंसीज आती हैं, डिप्रेशन आ जाता है। तो ऐसे इन फियर्स को दूर करना है। आई एम अफ्रेड ऑफ माई फाइनेंशियल, फियर इज ऑफन एक्सेप्टेड बाय एज नॉर्मल। डर होना नॉर्मल बात है, लोग कहते हैं, लेकिन डर किस लिए? व्हेन वी अनकवर आवर डीप फियर्स ऑफ लॉस और फेलियर। एक आदमी की नौकरी लगी और उसकी वो नौकरी में कामयाब नहीं हो सका, वो इस बात को ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि वो फेल हो गया। इट इज, अगर आप जिस दिन कह दोगे यस आई एक्सेप्ट आई फेल्ड एंड आई एम रेडी टू लर्न द वे आई कैन इम्प्रूव, आप बिलीव करिए आप ग्रो करोगे। आपके वुंड्स हील होने हैं। आपको किसी ने प्यार में धोखा दे दिया, आपने अपने अंदर एक फियर रख दिया कि रिलेशनशिप खराब होते हैं, हर लड़का लड़की एक दूसरे को धोखा ही देते हैं, या एक आदमी को मिसट्रीट कर रहा है, तो आपको बिलीव हो गया कि मिसट्रीट करना सही है। आप इस बिलीफ सिस्टम को तोड़िए, आपके अंदर से अबंडेंस खुलना शुरू हो जाएगी। डीपली ब्रीथ करिए और रोज जब बोलिए कि जब मैं वेन एवर आई एम एक्सेलिंग द नेगेटिव एनर्जी एंड आई एम इनहेलिंग द पॉजिटिव एनर्जी विद इन यू। डू दिस बिलीफ सिस्टम, आप प्रैक्टिकली देखोगे आपके अंदर चेंज आएगा।
Beliefs have emotion attached to them and the emotional body contains, उसका एक पैटर्न सेट हो जाता है आपके अंदर और वो आपके ऑरा के अंदर बहुत स्ट्रांगली बैठ जाता है। जैसे जैसे आप इसीलिए किसी भी चीज को ब्रेक करने के लिए आपको रिपीटेशंस करने पड़ते हैं। इसीलिए योगा में भी रेपिटेशन है, मंत्रा में भी रेपिटेशन है, रेमेडीज में भी रेपिटेशन है। रेपिटेशन इज सेटिंग अप ऑफ द न्यू पैटर्न्स इन योर लाइफ। It is like an exercise. When you start going to gym every day, the first 5 days are painful, but the 10th day or the 15th day or the 40th day, you don't feel that pain in your muscles because repetition has been happening. You know, you're used to this exercise, right? First time you will do the fast, you will feel a craving. अरे नहीं, मुझे तो खाने को चाहिए, मुझसे मैनेज नहीं हो रहा. How do I do a fast? But 10 बार 20 बार जब आप कर लेते हो तो आपको आदत पड़ जाती है बॉडी को. You get used to it. You get mentally by that situation कि आज का दिन फास्ट का, आज मैंने नहीं खाना. Right? So ways to clear negative energy में forgiveness process है. Clearing process is deeply healing and may bring emotional release by simply stating that you forgive yourself. Ask for. Always there is a Ho'oponopono prayer that normally say, I am sorry, please forgive me, thank you, I will, and accept me as your friend. This is your prayer. So, वो prayer, for example, when you state that you forgive yourself for believing you should be ashamed of your financial situation, you release the pain and the pattern of self-blame. आप खुद के ऊपर blame करना बंद कर देते हो. Remember you made it up. Therefore, मैंने आज सुबह तक वैशाली के साथ ये बात कर रहा था कि कितने लोग आएंगे और कितने लोग ज्वाइन करेंगे, बट मैंने उसको लास्ट स्टेटमेंट क्या बोली, यू हैव डन योर बेस्ट, डोंट वरी, लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट कैंपेन दैट वी आर प्लानिंग ऑन द वैदिक न्यूमरोलॉजी. अगर मैं उसे कहता अरे वाह यार विशाली, यू बीन सो ट्रेन्ड, यू आर सो मैच्योर, व्हाई आर यू नॉट एबल टू गेट मोर पीपल, तो उसके अंदर जो और अच्छा करने की कैपेसिटी है वो भी खत्म हो जाती. Create a space and positive energy for each other. Say thank you for whatever you're getting. This is how you will create the negative energies out of you. Okay. So this finishes our day for today. So I want to just take 2 minutes from you, since it was your first day of introduction, although Vishali knows me from old, but still it is the first day of this course. So how has been your experience? So we'll start from the ladies first. किरण जी, आप बताएं आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस हमारे साथ. No words to express, strictly speaking. I can say कुछ it's a different level sir. पता नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने सोचा कि आज अटेंड ही नहीं करूंगी, लेकिन मुझे 1 मिनट भी ऐसा नहीं लगा कि एनर्जी नहीं है, अब मैं निकल जाऊं क्लास से. तो I feel blessed to be a part of this particular workshop too. Thank you so much. Thank you, sir. Thanks a lot. जी भरत जी. तो नई चीज़ें जानने को मिली कि क्या हम नेगेटिविटी हटाएं और कैसे पॉजिटिविटी लाए मोर मनी अर्निंग के लिए और मनी को ज़्यादा अपनी लाइफ में बढ़ाने के लिए, वो सब नया कुछ जानने को मिला. तो बहुत अच्छी चीज़ है कि उसको अपनी लाइफ में लेना चाहिए अपने को, कैसे अपने उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, वो जानने में. ठीक. वैशाली. सर मुझे मोर नॉलेज में आई गॉट अ मोर नॉलेज कि मैं और रेमेडीज जान सकी. बाकी रेमेडीज आप देते रहते हैं फॉलो, बट आज कुछ नई रेमेडीज भी मिली जो देखो आज हमने कोई रेमेडी डिस्कस नहीं करी, आज हमने पैटर्न्स पे बात करी. पैटर्न्स की आप, बट जो आपने फर्स्ट रेमेडी थी उसी से एक पॉजिटिव, यानी मेरे लिए कुछ चीज मुझे लग रहा था. वैसे ब्लॉकेजेस वगैरह तो सारे आपने रिमूव कर दिए, जो मेरे दिमाग में थे वो सारा रिमूव्ड है. बट थिंग इज कि हाँ, एक नया चीज मुझे मिला कि क्या हम किस तरह से, मैं अगर सोच रही थी तो शायद वो भी मेरे लिए गलत हो सकता था, तो उस चीज को मैं वर्कआउट कर सकती हूँ. एक काम आप और अच्छी कर सकते हो लाइफ में, जब भी आप किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो, जब भी आप किसी बहुत इंपॉर्टेंट, if you have living parents, please go and touch their feet and go. One, if they are not in this world, stand before their foot, their image, and simply say that I am submitting my urge to you. I am going for this purpose. I just want कि आपकी एनर्जी मेरे पीछे पीछे मेरे साथ वहां तक चले और मेरे को कामयाब बनाए. और रास्ते में
जो भी आपको मिले उसको स्माइल करके, अरे वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, गुड, ग्रेट। मेरे को कोई बच्चा मिलता है ना, जैसे मैं नीचे, आई गो आउट ऑफ माई अपार्टमेंट, बच्चे खेल रहे हो, तो एक किसी की मम्मी डांट रही होगी, मैं उनको जाके रोक देता हूँ, मैं कहा डांटो मत, ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसको शरारत करनी आती है, उसको करने दो, भैया तोड़ देगा, नया ला देना, कितने का है, खराब कर देता है दीवारें, करने दो, से थैंक यू। शॉपकीपर्स है मेरे गली, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे शॉपकीपर्स हैं आसपास, तो भैया राम राम, कैसे हो, सब ठीक, घर परिवार बढ़िया, कीप विशिंग एंड कमिंग टू योर होम, एज यू क्लाइंब द स्टेयरकेस से थैंक यू that today God has given your legs the power to climb again back to your home. Say thank you that you are able to go down and do your work. Say thank you to the pigeons who come to your terrace and have some food. Say thank you to the plants who are there in your home. Say thank you to the kitchen that cooks for you. Say thank you to the water tap who gives you the water. Say thank you to the milkman. Start saying thank you to every damn thing in this your life, and you will say thank you will come back to you. Then I Do do it. this. डू इट, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, जितनी भी रेमेडीज आगे सिखाऊंगा, ये आज का जो मैंने आपको डिटेल दिया है, ये बहुत से लोग नहीं करते। 80% लोग जो आगे रेमेडीज आएंगी ना, वो करते हैं, और फिर वो मैनिफेस्ट नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपने पैटर्न्स पे काम ही नहीं किया। तो आप अपने पैटर्न बदलिए, मैं रेमेडी लिख के देता हूँ, आपको काम करेगी, 200% काम करेगी। आपने जो स्टार्टिंग में रेमेडी बताया था ना, जी। साउथ ईस्ट में दिया, वो तो मुझे पता था, लेकिन ये जो रेंटल हाउस पे मैंने जहाँ पे शिफ्ट किया, मैंने कहीं तो पढ़ा है साउथ ईस्ट में ब्लू कलर नहीं होना चाहिए, इज इट ट्रू? करेक्ट। लेकिन ये किचन में, मेरे साउथ ईस्ट में किचन है जहाँ पे दिया जलाने को मैं रख रही हूँ, हाँ, लेकिन उधर ब्लू कलर आ रही है, कोई उसके बात लिए नहीं, कुछ आप रेमेडी है? उसमें कुछ नहीं करिए, आप एक गहरे रंग का पत्थर कटवा के लाइए मार्केट से, कहाँ से क्या? ग्रीन कलर का पत्थर ले आइए, ओके। और उसको अपने बर्नर के नीचे रख दीजिए। ओके, मुझे लग रहा था ये नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो ये रेमेडी करना है। आप ग्रीन कलर का पत्थर ला के रख दीजिए, ओके। ये, और ग्रीन कलर के पत्थर को जहाँ आपका बर्नर पड़ा है, एंड टू एंड लगा दीजिए, ये, और वहां पे आप दिया परमानेंटली लिट करके रखिए, कोई ऐसा दिया रख दीजिए जो 3-4 घंटे चलता हो, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी आप सुबह उठते हैं ना, एक, मैं, सारे बर्नर्स ऑन करो, उनको जला दो, से ओम अग्नाय नमः, हाँ, एंड से थैंक यू टू द अग्निदेव फॉर बीइंग देयर प्रेजेंट इन अ कंट्रोल्ड वे इन योर होम। अग्नि का विध्वंसक रूप भी है, अग्नि का वार्मर रूप भी है। जब आप ऊन पहनते हो, ऊन का कोई वार्म चीज पहनते हो सर्दी के अंदर, वो आपको वार्मनेस देती है, अग्नि देती है, लेकिन वही आप गर्मी में पहन लो तो आपको रैशेज हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, राइट। तो आपकी बॉडी में अग्नि कहाँ है? आपके मस्तिष्क में ज्ञान की अग्नि, आपके स्टमक में जठर अग्नि, आपकी लेग्स में चलने की अग्नि, धमनियों की अग्नि। तो देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ अग्निज दैट यू हैव। जब आप कभी मेडिटेशन करते हो, प्रेयर करते हो, आप क्या जगा रहे हो? अपने अंदर भक्त अग्नि जगा रहे हो, स्पिरिचुअल अग्नि जगा रहे हो, आप एलिवेट हो रहे हो। क्लास थोड़ी लंबी होगी, सॉरी, यही 15 मिनट फालतू ले लिया मैंने। मैंने आपको कहा था मैं थोड़ा सा खराब टीचर हूँ। सर तो इवन बेसिन एंड द बर्नर साथ एक ही लाइन में नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ओके सर, मेरे वहाँ है मैं वैसे, तो, कोई मतलब। बात नहीं, उसको लिड पे कवर करके रखो, बर्नर बेसिन का लिड आता है, ओके, बेसिन का तो लिड सर आता है। उसके ऊपर भी मैंने बीच में प्लांट रखा है तो दैट हाँ, इज अच्छी बात फाइन? है, ठीक है। ओके। देखो, वहम नहीं पालना, याद रखना, ये कोई भी कोर्स जो मैं करा रहा हूँ आपको सुपरस्टिशियस करने के लिए नहीं पढ़ा रहा, आपका सुपरस्टिशन तोड़ने के लिए बना रहा हूँ। पहले अपने अंदर बिलीफ लाओ कि मैं कामयाब हो सकती हूँ, उसके बाद कोई भी रेमेडी करो। रेमेडी कॉम्प्लीमेंट्री है, वो एक सप्लीमेंट है, वो विटामिन डी का कैप्सूल है। पहले खुद की हड्डियों पे तो काम करो, खुद के लिए जी। तो काम करो। अपने पैटर्न्स को बदलोगे, चीजें बदलेंगी, मैं लिख के देता हूँ आपको। पैटर्न्स पे नहीं काम करोगे, रेमेडी करोगे, काम नहीं करेगी, फेल हो जाएगी। हम जादूगर नहीं है, हम हर चीज को नहीं इरेडिकेट कर सकते। कुछ तो हमें झेलना है ना, कुछ तो गलत किया होगा तभी ह्यूमन जन्म मिला है, नहीं तो मृत्यु और उससे फ्री हो चुके होते।
ऊपर आराम से बैठे होते हेवन में, कहीं अडॉक के अंदर, क्यों वापस धरती पे भेजा भगवान ने? कुछ तो पेंडिंग कर्मा होगा, कुछ तो पेंडिंग कर्मा होगा। तो डोंट वरी ऑन दैट। अगर चैलेंज है तो ठीक है, इट इज एक्सेप्टेड हैप्पीली। अरे बस सिखाने के लिए आया है। बता मेरी लाइफ में फेलियर क्यों हुआ? भगवान ने मुझे सीखने के लिए कहा, ये चीज तू सीख। फर्स्ट टाइम somebody duped me in astrology course. He took 30,000 rupees from me and didn't teach me well. I didn't curse him. I said, सर आपने ना मेरे में आग लगा दी है। अब मैं वो बन के दिखाऊंगा आपको कि आप मुझे ढूंढोगे। और आज वो मुझे फोन करते हैं कि आके मेरे से मिल। आई विल नॉट टेक नेम ऑफ दैट टीचर बिकॉज आई रिस्पेक्ट हिम, क्योंकि पहली लाइट उन्होंने दिखाई थी। ठीक है ना? तो नेवर से कंपेयर योर कि सर फलाना टीचर खराब है, ये टीचर अच्छा है। नहीं, ऑल टीचर्स आर गुड। उसके पास जो था देने के लिए आपको बेस्ट दे दिया, जो आपको और दे रहा है उसको थैंक यू बोलिए, और पिछले वाले को बोलिए आपने यहाँ तक पहुंचाया, इसके कारण ही मैं यहाँ तक पहुंच पाई। अगर आपको वो पहली क्लैरिटी नहीं मिलती तो दूसरी क्लैरिटी आप कहाँ से लेते? सो नेवर क्रिप ऑन एनीथिंग। क्रिप करना बंद कर दो जिंदगी में। पैसा अपने आप चल के आएगा, पार्टी करने में मजा आएगा। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर। Thanks a Good lot. night, sir. Thank you, sir. Good night, sir. So now we will meet on Wednesday night, 9 p.m. Night. Okay. Thank you.